So these are the 10 commandments of my investing journey. So far, what I have learned, I am going to share with you all. Hope you all like and hope कुछ अच्छा हो जाए, मुझे भी कुछ सीखने को मिले, आपको भी कुछ सीखने को मिले. Okay, Avis bhai, next. Okay, so know few things, know them well. There's a famous Bruce Lee saying that I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick for 10,000 times. What does it mean? You don't have to hunt in every sector. Market is a wild jungle और उसमें बहुत सारे animals है. So you don't have to hunt each and every sector. You have to be good in particular sectors. You should know your niche. आपको आपका niche जानना है कि what you are good at. आपका अपना सेक्टर क्या है. अगर आपको 3 सेक्टर समझ में आते हैं तो आप उसमें प्ले कीजिए. आपको 5 सेक्टर समझ में आते हैं तो आप उसमें प्ले कीजिए. फोमो में मत आइए. अगर आप फोमो में आओगे और दूसरे सेक्टर्स पे आप ध्यान लगाओगे तो माइट भी पॉसिबल कि जिस चीज में आपकी स्ट्रेंथ है उस चीज में आप 100% नहीं दे पाओगे. ये ऐसी बात हो गई कि अगर राहुल द्रविड़ को बोले कि आप सहवाग की तरह खेलो तो वो ना स्लो खेल पाएगा ना वो फास्ट खेल पाएगा. सो इट इज बेटर कि नो फ्यू थिंग्स बट नो देम वेल. आपकी पकड़ होनी चाहिए. एंड डोंट बी इन फोमो. फोमो में मत आओ. ठीक है, आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा कमा रहा है, रैली रैली हो रही है, कमाने दो, लेकिन आपको जिस चीज में समझ में है आप उसी में इन्वेस्ट करो, उसी में आपका भला होगा. नेक्स्ट आयुष भाई. Okay, so this is one of the biggest and most important lesson. Margin of safety is greater than margin of return. We all want to enhance our return. Okay, उसको हमें बढ़ाना है, but at the same time downside कितना protected है वो भी आप चेक करो. We all chase returns. Even I. This is also one of my early mistakes. I only chase returns, high alpha stocks, high delta stocks. I have chased many penny stocks, many kachra stock, bhangar cap. I have chased many hot stocks. But एक बेयर मार्केट और आपका 60-70% वेल्थ वाइप आउट हो जाएगा अगर आपको नहीं पता कि आप डाउनसाइड कितना प्रोटेक्शन में रह रहे हो. यू शुड हैव टू नो कि आपका डाउनसाइड प्रोटेक्शन क्या है. आपको फ्यूचर की जर्नी दिख रही है कि 100 का स्टॉक है, वो 500 होगा, 700 होगा, 800 होगा. ओके, बट अगर कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हुआ, परमानेंट डैमेज हुआ बिजनेस में, तो उसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना है. यू शुड नो दैट. सो इन्वेस्टिंग इज अ लोनली रोड, बट आपको ये दोनों साइड की तलवार है. आपको दोनों साइड खेलना पड़ेगा कि चलो डाउन साइड में कितना जा सकता हूं, अपसाइड हाउ मच आई कैन गो. सो टेक रिस्क, बट टेक रिस्क अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ. और आप कितना अफोर्ड कर सकते हो उतना ही रिस्क लो. सो द मार्जिन ऑफ सेफ्टी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन मार्जिन ऑफ योर रिटर्न. मोनिश पब्राई हैज रोट अ वेरी ब्यूटीफुल कोट ऑन इट दैट रिटर्न ऑफ योर कैपिटल शुड बी ग्रेटर देन योर रिटर्न ऑन कैपिटल. We all chase ROCE, ROE, EPS कितना है. Yes, but what is the downside? कितना नीचे जा सकता है. A famous Charlie Munger says, अब बिजनेस कहाँ पे डाई हो रहा है. His first checklist is where the business can die. So you need to know that. Don't blindly chase everything. Just need to know that there are two sides of the swords. एक में आप अच्छा कर सकते हो, एक में आप बुरा कर सकते हो. So you need to concentrate on both the things. Next. Okay, so a much debated and बहुत ही famous thing, diversify and concentration. I think आपने 4th point पे focus किया है. We are on 3rd point. Yeah. So diversify, but don't diversify. The first thing, Charlie Munger, he says diversification should not be more than 4 stocks. Yes, strange, you know, but yeah, he is Charlie Munger. वो कर सकता है. We can't do that. मतलब इतना concentration we can't do that जो diversification बोल रहा है. Charlie Munger has earned a great amount of his wealth by investing in only 2 stocks. Peter Lynch 1400 stocks. Warren Buffett focused portfolio 20 stocks. But the same Peter Lynch has told, why would you want to invest in your 22nd best idea when you can invest your money in your best or second best idea?
दिस इज फॉर रिटेल इन्वेस्टर. वी डोंट हैव एक्सेस टू द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास कभी नहीं आएगी सर, वो इंस्टीट्यूशन के लिए, हमारे लिए नहीं है. सो डाइवर्सिफाई उतना ही करो. देर इज नो फिक्स आंसर कि आपको 5 स्टॉक लेना है, 10 स्टॉक लेना है, किसी को 15 लेना है, किसी को 50 लेना है, किसी को 100 लेना है. ऐसा कोई आंसर नहीं है. अगर आप 50 स्टॉक्स लेना चाहते हैं, लो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप 50 स्टॉक को मॉनिटर कर सकते हो तो इन्वेस्ट इन 50 स्टॉक्स. देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. अगर आप 2 स्टॉक मॉनिटर कर सकते हो, 2 स्टॉक पे आप कंफर्टेबल हो, तो 2 स्टॉक पे इन्वेस्ट करो. बट इतना ही इन्वेस्ट करो और इतने ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जितना आप हैंडल कर पाओ. अगर आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो वो डाइवर्सिफाई नहीं होगा. वो डाइवर्सिफिकेशन कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. और एक लेवल के बाद 30, 40, 50 स्टॉक्स के बाद आपका रिटर्न अप डाउन होगा, आपको कोई मैटर ही नहीं करता है. बिकॉज इफ यू रीड कैलीज फॉर्मूला, आई थिंक एवरीवन शुड रीड अ फैंटास्टिक बुक रिटन बाय क्रिस मेयर, 100 बैगर्स. ही हैज शोन अ वेरी ब्यूटीफुल वे कि आप कैसे कम स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो. एंड पीटर लिंच हैज शोड द डिफरेंट वे कि आप ज्यादा स्टॉक में भी कैसे अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो. बट वी रिटेल, वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड. आपको फोकस रहना पड़ेगा कि चलो 15 स्टॉक, ओके, आई एम हैविंग 15 बिजनेसेस, ओके, तो 15 बिजनेस में कैसे अपना एलोकेशन डाइवर्सिफाई करूं और एट द सेम टाइम मुझे सब पता भी चले कि बिजनेस एक्टिविटी क्या हो रही है. सो आई थिंक देर इज नो पर्टिकुलर फिक्स आंसर टू दिस डिबेट. ये एंडलेस डिबेट है कि कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. आई थिंक आपको उतना डाइवर्सिफाई करना चाहिए जितना आप हैंडल कर सको. दैट इज वेरी सिंपल. द बॉटम लाइन इज आप उतना ही डाइवर्सिफाई करो जितने में आप मॉनिटर कर सको. दैट इज, डोंट इन्वेस्ट इन फॉरगेट, जस्ट इन्वेस्ट इन मॉनिटर. जितना मॉनिटर कर सको उतना आप डाइवर्सिफाई करो. दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर. नेक्स्ट. Oh yeah. Learn to read between the lines. Okay. In the business world, the rear view mirror is always clearer than the windshield. आपको हमेशा पता होता है कि पास्ट में क्या किया है, बट दैट डजंट मैटर. वी डोंट केयर अबाउट पास्ट. पास्ट अच्छा है, दैट इज बोनस, चेरी ऑन द टॉप. व्हाट वी केयर अबाउट फ्यूचर. उसका फ्यूचर में ब्लूप्रिंट क्या है, नोकिया ने क्या किया पास्ट में, दैट इज इंपॉर्टेंट. बट नोकिया आगे क्या करेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. So you need to do lot of things. If you are investing in a micro cap or small cap company, you need to scuttlebutt the things. You need to do scuttlebutt. If you do scuttlebutt nicely and then connect the data with the original data of the balance sheet, and you will know okay, what management is speaking and what I have seen it and what is the ground reality. और उससे डेटा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड इफ दैट बोथ आर मैचिंग और आपका कन्विक्शन बैठ रहा है, then invest in that company. You will earn very good things, very good amount of kegar. So you need to learn to read between the lines कि डेटा क्या बोल रहा है वो पूरी चीज नहीं है, शटलबट क्या बोल रहा है वो भी पूरी चीज नहीं है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है उसके ऊपर भी रिलाई मत करो. सबको कनेक्ट करो. कॉम्बिनेशन मिल गया और वैल्यूएशन अच्छी मिल गई, देन आप अपना कॉल ले सकते हो एंड यू कैन इन्वेस्ट वेरी गुड इन इट. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रीड बिटवीन द लाइन. सबको द्रोणाचार्य नहीं मिलते सर, आपको एकलव्य बनना पड़ेगा. सबको वो अर्जुन इज अ ग्रेट वॉरियर, बट उसको द्रोणाचार्य मिले. अगर जिसको नहीं मिले उसको कोई मेंटर नहीं है, उसको मार्केट इज द बिगेस्ट मेंटर. तो लर्न टू रीड बिटवीन द लाइन्स. एकलव्य बनो, एकलव्य व्यू रखो. आपको द्रोणाचार्य नहीं मिला, ठीक है, मार्केट को मेंटर बनाओ. मार्केट क्या बोल रहा है, आप ग्राउंड रियलिटी चेक करो क्या हो रहा है. अगर आपको सब कुछ दिख रहा है और सब आपको आप कनेक्ट कर सकते हो सबको, देन आई थिंक यू आर गोइंग टू मेक मनी. दैट इज नो स्टॉपिंग यू. देयर इज नो स्टॉपिंग यू. नेक्स्ट आयुष भाई. ओके, इन्वेस्ट एंड मॉनिटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन्वेस्ट एंड फॉरगेट. ओके, हम बहुत टाइम से ये सुन रहे हैं कि आपने एचडीएफसी बैंक के 1000 शेयर ले लिए होते और 20 साल रखे होते तो आप आज मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. सो वो कब होता है, देखो उसमें 100% स्किल सेट होता है और 200% लक होता है, तभी आप इन्वेस्ट एंड फॉरगेट कर सकते हो. अदरवाइज आप आज के जमाने में इन्वेस्ट एंड फॉरगेट नहीं कर सकते. यू शुड इन्वेस्ट एंड मॉनिटर कि वो क्या कर रहे हैं. आई एम एन इन्वेस्टर इन एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस. बाय द वे, दिस इज नॉट स्टॉक रिकमेंडेशन, बट वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस क्या कर रहा है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के अपडेट्स क्या है, सेक्टर क्या कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही है, इंडिया के लोग लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कौन सी कंपनी में ज्यादा ले रहे हैं. यू नीड टू लुक एट ऑल द थिंग्स. इन्वेस्ट एंड मॉनिटर, डोंट इन्वेस्ट एंड फॉरगेट. अगर आप इन्वेस्ट एंड फॉरगेट कर दोगे, एक घोड़े में से एक गधा निकल गया ना, तो आपकी पूरी मतलब कैगर आपका डाउन हो जाएगा.
सो इन्वेस्ट एंड मॉनिटर फ्यू थिंग्स के क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो देर इज अ फेमस सेइंग ऑफ पीटर लिंच, नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी निग्लेक्ट फ्यू थिंग्स विच हमें इजीली मिल जाती है, बट एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है. ठीक है, आपको एक एच डी एफ सी बैंक मिल गया, एक टाइटन मिल गया, दैट इज गुड, बट यू शुड इन्वेस्ट एंड मॉनिटर. बिकॉज अगर आपको कन्विक्शन नहीं रहा तो ये वॉलेटिलिटी आपको गिरा देगी. सो इन्वेस्ट एंड मॉनिटर योर स्टॉक्स, अपडेट रहो उसका, एजीएम मीट्स करो. सो दिस इज द वे टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. ऐसा नहीं है कि चलो आज किसी न्यूज चैनल पे आ गया या एक्स वाई जेड सुपर इन्वेस्टर ने बोल दिया कि ये स्टॉक ले लो, तो हमने ले लिया फिर हमने देखा नहीं. तो नो, ये सब नहीं होता है प्रैक्टिकल जमाने में सर. ये बहुत मतलब टफ है, और अगर ये हो भी गया ना तो आपका 100% स्किल सेट से ज्यादा 200% लक होगा. सो आई सो दिस इज प्योरली माई बिलीव दैट यू शुड इन्वेस्ट एंड मॉनिटर रादर देन यू शुड इन्वेस्ट एंड फॉरगेट. So that's it. What's my next? Yeah. Uh, what we have learned in US markets. They look at business first and management second. But in Indian concept, you should look at the management first. बाय हुक और बाय क्रूक, ये लेसन बना लो. मतलब इसको आप बुक में लिख लो कि आप इंडियन कंटेक्स में अगर यू आर इन्वेस्टिंग तो फर्स्ट थिंग आपको कुछ करना है तो वो मैनेजमेंट की हिस्ट्री चेक करनी है कि व्हाट मैनेजमेंट इज डूइंग. उसके बाद आप बिजनेस चेक करो. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपको इंडियन मार्केट में मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो आपका अच्छे से अच्छा स्टॉक भी परफॉर्म नहीं करेगा. दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, बट मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट इन इंडियन मार्केट एंड बिजनेस इज मोर इंपॉर्टेंट इन वेस्टर्न मार्केट. क्योंकि इसका रीजन है, वेस्टर्न मार्केट के आप स्टॉक्स देखो, प्रमोटर होल्डिंग देखो 15%, 16%, 20%, 10%, बट इंटीग्रिटी देखो 100%. इंडियन एस्पेक्ट देखो, प्रमोटर होल्डिंग 60%, 75%, 70%, बिजनेस का डेटा देखो 10%. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप मैनेजमेंट देखो व्हाट मैनेजमेंट इज डूइंग. और ऐसा नहीं है बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट इन इंडियन कंटेक्स. इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट, देर आर अबाउट 5,000 business, 5,000, and every business wants to make money, but only 10% of the beautiful business wants to make money for their shareholders. So if you are investing in Indian market, आप लिख लो, मतलब blindly I can say कि आप लिख लो management should come first. So that is a famous saying of Philip Fisher. In evaluating a common stock, the management is 90%. 90% management, 9% industry, and everything else is 1%. This is very relevant, very, very relevant for Indian market. And what is relevant for the US market? If you guys are investing in US stocks, if you guys are having investments in FANG stocks, in Netflix, in anything, then go for business that any idiot can run, because sooner or later any idiot probably is going to be running it. Example, माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स जाएगा, बट माइक्रोसॉफ्ट को अफेक्ट नहीं करेगा. वाई? प्रोसेस ड्रिवन कंपनी. कोको कोला नहीं अफेक्ट करेगा, प्रोसेस ड्रिवन कंपनी. नेस्ले, प्रोसेस ड्रिवन कंपनी. इंडियन कंटेक्स, रिलायंस, अगर मुकेश अंबानी को कोरोना भी हो गया ना, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट हो गया ना, तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. सो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा चेक करना चाहिए, बिकॉज इंडिया में सेकेंड जनरेशन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर. इंडिया में आई हैव सीन मेनी गुड बिजनेसेस. फर्स्ट जनरेशन एक्सट्रीमली गुड, मार्केट कैप को कहां से कहां लेके जाते हैं, मिलियनर से बिलियनर. बट सेकेंड जनरेशन को कुछ करना ही नहीं है, इतना पैसा आ गया, कुछ करना ही नहीं है, नो वन इज इंटरेस्टेड. तो एंड में क्या होता है, कैपिटल मिस एलोकेशन होता है. फादर होता है वो कोर कॉम्पिटेंस पे फोकस करता है कि एक ही बिजनेस कर रहा है ना, दो बिजनेस करना है. नई नई जनरेशन आती है, उनको कुछ अलग करना होता है. वो एक बिजनेस से निकल के, स्टील का बिजनेस में से निकल के वो प्लास्टिक में एंटर होंगे, प्लास्टिक में से निकल के वो कुछ टॉयज में एंटर होंगे, टॉयज में से निकल के वो गारमेंट में एंटर होंगे. वो क्या हो जाएगा, वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा सर. सो यू नीड टू लुक एट एवरीथिंग कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है इंडिया में. तो इंडिया में इंटीग्रिटी इश्यूज बहुत होते हैं. सो यू नीड टू लुक एट द मैनेजमेंट एस्पेक्ट फर्स्ट, देन बिजनेस एस्पेक्ट. एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन फॉरेन स्टॉक, यूएस स्टॉक्स, आप लंडन एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हो, दो look at business first and then management second. Next, Ayush bhai. Okay. This is very important. Always
invest in long term growing and sustainable trends. Don't invest in short term trends. एक दो साल की रैली, इफ यू डोंट नो हाउ टू एंटर एंड हाउ टू एग्जिट, अगर आपका मार्केट टाइमिंग गलत हुआ, देन यू कुड हैव एंड अप, मतलब आप बहुत ही गंदे लॉस में फंस सकते हो. सो गो विथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेंड्स. अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेंड दिख रहा है, एग्जाम्पल इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इज वन ऑफ द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेंड विच आई थिंक हो सकता है. सो आई एम बैटिंग ऑन इट. This is no way a recommendation, but insurance, banking, ready to eat, ready to heat, women emancipation, these are the long term and sustainable trends which data is telling. What data is telling us? आप रीड करो, मैक्रो रीड करो, क्या हो रहा है वर्ल्ड में. पहले क्या होता था? A single bread earner in our family, single bread earner. Okay, now nuclear families, husband wife दोनों अर्न कर रहे हैं. सो लुक फॉर दैट थीम के कहां पे फीमेल को इजीनेस हो रही है अपनी लाइफ में, कौन कौन सा काम करने में, तो उसकी कौन कौन सी कंपनीज है. गो फॉर दैट कंपनीज. रेडी टू ईट फूड मार्केट बहुत बड़ा है, स्पाइसेस मार्केट बहुत बड़ा है. पहले लूज पैकिंग मिलता था, अभी लूज पैकिंग नहीं मिलता है, कम मिलता है, अभी ब्रांडेड हो गया है. पहले 10-12 साल पहले जब मैं स्कूल में था, मतलब डब्बे में से बिस्किट हम खा रहे थे, डब्बे में से. एंड नाउ इट इज ब्रिटानिया, पार्ले, फुल ऑर्गेनाइज सेक्टर. तो दिस इज अ बिग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेंड. पूरा वैल्यू माइग्रेट हो गया, loose packing to a standard one. So these are the new themes. So आपको उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि रेडी टू ईट में क्या चल रहा है, कौन सा चीज वुमेन का टाइम बचा रहे हैं ताकि वो वुमेन जॉब कर सके. यू नीड टू लुक एट दिस थिंग्स और उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, उसमें कंपनीज ढूंढिए. ये ब्रॉडर थीम हो गया, इससे कंपनी नहीं मिलेगा. ये ब्रॉडर थीम हो गया, इसमें कंपनी ढूंढना है. उसमें 10 कंपनी मिलेंगे, सब पे इन्वेस्ट नहीं करना है, वो डाइवोर्सिफिकेशन हो जाएगा. फाइंड गुड 2-3 कंपनीज, फाइंड गुड 2-3 कंपनीज. उसमें देखो कि कंपनीज क्या कर रहे हैं. इफ यू हैव आइडेंटिफाइड 2 और 3 गुड कंपनीज और आपने 10 साल के लिए अच्छा होल्डिंग कर लिया उसमें, तो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी. बट दिस इज नॉट इजी एट इट साउंड्स. आपको पता है रेडी टू ईट क्या है, रेडी टू हीट क्या है, पर कितनी कंपनी हमें मिलेगी जो लिस्टेड होगी, कितनी कंपनी हमें मिलेगी जो लिस्टेड में होकर अच्छा ग्रो करेगी. तो यू नीड टू लुक एट एवरीथिंग. सो इट इज नॉट इजी के शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स दिख रहा है कि अभी ये चल रहा है, इसमें मैं इन्वेस्ट करूं. अगर आपका एंट्री एग्जिट अच्छा हुआ, आप लकी हुए, स्किल सेट अच्छा हुआ आपका, तो आप कर सकते हो. विच इज आई एम नॉट गुड एट इट. मैं नहीं कर सकता ऐसा. सो मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं. आई वॉन्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेंड. सो आई इन्वेस्ट इन दोज थिंग्स विच आर bound to happen slowly, steadily, but for long. So sustainability has to be a way of life, to be a way of business. A famous quote by Anand Mahendra. So I think there is a famous video on YouTube of Utpal Sheth. He is talking about long-term sustainable trends. I think everyone should watch that video. You will get more clear idea कि क्या हो रहा है, क्या किस में ले सकता है, कैसे क्या कर सकता है. So ये सब हमारी आंखों के सामने होता है, विजिबली इनविजिबल होता है. लास्ट 10-12 ईयर्स में कितनों ने देखा कि एक सादा नोकिया का डब्बा अभी पूरा आईफोन और सैमसंग टच स्क्रीन पे आ गया. इट्स इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, फ्रंट ऑफ आवर आइज. 2016 में आप डेटा देखो, डेटा एक महीने का 1 GB इंटरनेट डेटा था, अभी कितना है? पर डे वी आर कंज्यूमिंग मोर देन 1 और 2 GB ऑफ डेटा, और उतना हमें टेलीकॉम कंपनीज दे रही है एट अ मच चीपर रेट. So this is in front of our eyes, but this is not visible. This is invisibly visible. जो हमें देखना है, अगर आप ये देख गए तो you are going to make lot of money. Not easy at it sounds, but if you want to make a good healthy CAGR, so you should have to read. You should have to keep your eyes and mind both open. So this is a very important thing. Always go with long-term growing and sustainable trends. You will surely make good amount of money. Next. Yeah. Learning from successful people's failure is more important there than learning from their success stories. Failures teaches us a lot. What is success? A collection of experience, a good experience. And what is good experience? A collection of bad experiences. How do you get the experience? अच्छा एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा? बुरे एक्सपीरियंस में से. अच्छे एक्सपीरियंस का आप क्या करोगे? सक्सेस की तरफ जाओगे. सो ये बहुत फैंसी स्टोरीज होती है जो हमें पहले से नर्चर की जाती है कि राकेश झुंझुनवाला इज इन्वेस्टेड इन टाइटन. आप भी कर सकते हो और आप भी मतलब बहुत कमा सकते हो. बट एट द सेम टाइम यू लुक एट इट्स फेलियर रेट्स. एक टाइटन हुआ, लेकिन एक टाइटन के सामने कितने उनके A to Z इंफ्रा हुए. यू सी दैट.
आई एम नॉट दैट मच बिग कि उनके ऊपर मैं कमेंट कर पाऊं, लेकिन आई एम अ रिटेल, सो हमें क्या देखना है, सो वी नीड टू लुक एट देयर फेलियर स्टोरी कि वो फेलियर से सक्सेस में कैसे जा रहे हैं। सिर्फ सक्सेस सक्सेस देखते रहेंगे ना तो हम ब्लाइंड हो जाएंगे, हम बायस हो जाएंगे। सो वी नीड टू लर्न फ्रॉम देयर फेलियर स्टोरीज। यू सी सचिन तेंदुलकर अपनी लाइफ में कितनी बार 20-30 रन के बिलो आउट हुए हैं, आई थिंक 60% ऑफ द टाइम, बट उनका सक्सेस रेशियो ज्यादा है। क्यों? लॉन्ग टर्म लेंथ देखो, क्यों? फेलियर्स फेलियर्स है, लेकिन उन्होंने उसमें सक्सेस कैसे कन्वर्ट किया वो पूरा स्टोरी पढ़ो, सिर्फ सक्सेस स्टोरी मत पढ़ो। सो लर्निंग फ्रॉम देयर फेलियर इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि वो क्या अवॉइड करना है, कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट व्हाट नॉट टू डू। आपको क्या नहीं करना है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। क्या करना है वो तो सबको पता है सर, आप गूगल करो, आप कोई भी वीडियो उठा लो, आप कोई भी बुक रीड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको मल्टीबैगर फाइंड करने की रेसिपी क्या है। इट इज वेरी वेरी इजी, बट कैसे फाइंड करोगे वो सबको पता है, लेकिन फाइंड करके कैसे होल्ड करोगे वो सबको पता है, एग्जिट कैसे करोगे किसको नहीं पता सर। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सो आई थिंक लर्निंग फ्रॉम द फेलियर्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग फ्रॉम द सक्सेस स्टोरी। कितनी बार वो गिर के ऊपर आया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन वो कितनी बार ऊपर चढ़ा है। So learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself. Next, Ayush bhai. Okay. The not to do list should be greater than your to do list. What you don't do determines what you can do. This is a very important thing. अभी आई थिंक ये रिपीट होगा, लेकिन what not to do is very important. Stock market is all about only one thing. You should know what you should avoid. आपको क्या अवॉइड करना है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। आपको क्या लेना है ना वो तो आपको गांव बता ही देगा। आप टीवी चैनल ऑन करो ना, आपको क्या लेना है वो सब पता चल जाएगा, लेकिन आपको उसमें से क्या अवॉइड करना है ना, यू शुड नो दैट। आपको यू शुड नो हाउ टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द chaff। आपको नॉइज बहुत मिलेगा, न्यूज आती है उसके साथ नॉइज भी आता है। यू शुड नो कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या है और इसमें इंसाइट क्या है। आप इंसाइट पे फोकस करो। इंफॉर्मेशन से आपको पता चलेगा मार्केट में क्या हो रहा है, इंसाइट से आपको पता चलेगा मार्केट में क्या नहीं करना है और क्या करना है। सो फोकस ऑन व्हाट नॉट टू डू रादर देन फोकस टू डू लिस्ट पे भी करना है, लेकिन फोकस मोर ऑन नॉट टू डू लिस्ट। तो मार्केट इज नॉट अबाउट दैट इजी थिंग कि आपने मतलब वॉरेन बफेट की किताब पढ़ ली, पैट डॉर्से की किताब पढ़ ली कि ये टू डू लिस्ट है, अगर मैं मोड ढूंढ लिया तो मतलब मैंने कमा लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। इट इज अ वेरी क्रूअल जंगल। इसमें हमें पता होना चाहिए कि कब क्या हो रहा है, कब क्या करना है, अदरवाइज यू विल गेट लॉस्ट। आप डियर की तरह सब जगह भागते रहोगे, आपको मिरर दिखेगा लेकिन आपको पानी ही नहीं मिल पाएगा। सो यू शुड नो व्हाट यू शुड अवॉइड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको क्या अवॉइड करना है आपको पता होना चाहिए। आपको कौन सी बॉल लीव करनी है, कौन सी बॉल पे चौका मारना है आपको पता होना चाहिए, अगर आपको क्रीज पे लंबे समय तक खड़ा रहना है तो। नेक्स्ट, behavioral biases. This is a very, very debatable topic, but I have highlighted few things which are purely my learnings. That EQ, your emotional quotient, should be higher than your IQ. The most important quality for an investor is temperament, not intellect. You need a temperament that neither derives great pleasure from being with the crowd or against the crowd. आप इसमें कोई भी इन्वेस्टिंग स्टाइल ले लो, कॉन्ट्रेरियन ले लो, ट्रेडिंग ले लो, ग्रोथ इन्वेस्टिंग ले लो, वैल्यू इन्वेस्टिंग ले लो, एवरीथिंग लास्टली बॉइल्स डाउन टू योर बिहेवियर ओनली। आप क्या कर रहे हो? आप वॉलेटिलिटी इज नॉट द रियल रिस्क। फर्स्ट थिंग, आपका बिहेवियर रियल रिस्क है। आप बिहेवियर कैसा कर रहे हो, हाउ मच यू आर रिएक्टिंग टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ द मार्केट। आपका रिएक्शन मार्केट के एक्शन पे कैसा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर लेजी इन्वेस्टर हो देन गुड, बट लेजी इन्वेस्टर होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ देखना नहीं है। यू शुड अपडेट, आपको अपडेटेड रहना होगा। सो मार्केट इज ऑल अबाउट 150 का आईक्यू होने से कुछ नहीं होता। यू शुड बी अ स्मार्ट इनफ। जीनियस बन के इसमें कुछ नहीं होना है सर। सब आज डेटा का फ्लो इतना अवेलेबल है आयुष भाई कि सबके पास सब डेटा है। आप सिर्फ स्क्रीनर पे डेटा डालो आपको सब मिल जाएगा, बट कितने के पास वो नर्व्स होगा कि वो डेटा में से एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करे और उसको 5-7 साल तक कंपाउंड होने दे।
दैट इज वेरी बिग थिंग. अगर आप आज हमें राकेश झुंझुनवाला या कोई भी राधा किशन दमानी जी अगर हमें बता भी देंगे कि आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट करो, तो कितने लोग के गट्स होंगे कि उसमें वो 10% ऑफ द एलोकेशन कर पाएंगे, और कितने परसेंट ऑफ द लोग होंगे कि वो स्टॉक को 5-7 साल तक होल्ड कर पाएंगे. सर टाइटन में बहुत इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था. इफ यू गो बाय द हिस्ट्री, टाइटन 1996 7 8 से देखो, बहुत इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था. लेकिन ओनली फ्यू इन्वेस्टर लाइक राकेश झुंझुनवाला हैज द गट्स, हैज द रियल गट्स, तो इतने लंबे समय तक उन्होंने होल्ड किया. सर 1200 का शेयर 300 भी हो गया था एक बार, बट उन्होंने होल्ड किया. हम नहीं कर पाएंगे शायद. सो वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर बिहेवियर. We need to concentrate on our behavior. Okay, many people says that finding Titan is purely Rakesh Jhunjhunwala's luck. 100% हो सकता है ऐसा, लेकिन holding Titan for 2 decades is not a joke. It is a superpower. You should know, you should know what your behavior is. मार्केट क्या कर रहा है और आपको क्या करना है. मार्केट के एक्शन पे आपका रिएक्शन क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नो हाउ टू कंट्रोल दैट, know how to use that to your advantage. So your EQ should always be greater than your IQ. Next. Yes, break the rules, but never break the law. The rule is, my rule is to invest for long term. Always invest for long term, but I am not afraid to exit in short term also if required. मार्केट में कब क्या हो जाए, यू शुड, मतलब कभी पता नहीं होता है. ठीक है, आई एम इन्वेस्टिंग इन इंश्योरेंस बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन कल को कुछ हो जाए, आई डोंट नो. तो एन इन्वेस्टर मतलब हमेशा अपनी आंख और कान खुले होने चाहिए. अब कुछ भी चेंज हो जाए, सो यू शुड टेक दैट डिफिकल्ट डिसीजन. यू शुड बी एबल टू टेक दैट डिफिकल्ट डिसीजन. सो लॉ एक ही है. लॉ क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. रूल क्या है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कुछ भी बीच में टेम्पररी नहीं, परमानेंट. Hello. Yeah, guys, are you able to hear me? Meet bhai, are you there? Yeah, I think Meet got disconnected. Meet, I think there's some connection issue. Yeah, he's back. Okay, you're back. You're back. Perfect, perfect, perfect. I'll just go on. Hello, audible? हाँ, Meet bhai, continue. I think there was some issue in between. Please continue. Okay. So main thing is don't break. If something big happens in between, बहुत बड़ा खड्डा आता है जो आपको सामने जाने से ही रोक देगा, तो यू शुड टेक अ यू टर्न, एग्जिट कर लो. इट इज वेरी सिंपल. ब्रेक द रूल्स, डोंट बी अफ्रेड. वो कोई क्या बोलेगा, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म में निकल गया, आप ये क्या. ठीक है, आपका पैसा है. जब तक आपका पैसा नहीं डूबेगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि दर्द क्या होता है. सो लॉस इन्वेस्टिंग रूल, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, आई विल एग्जिट नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट. कोई शेयर से लगाओ नहीं, कोई शेयर से मैरिज नहीं करना है, सबसे फ्लर्ट. Guys, give us 2 minutes. We'll just figure out the connection issue. I think Meet bhai, now connection is stable. There was some issue in between. आप continue कर लो. I'll just mute myself. कुछ Okay, आपके साइड से कुछ connection issue. Okay, next. Learn to am I audible, Ayush bhai? Yes, you're audible. Now you're audible. Okay. You should, आप अपना वीडियो ऑफ करके एक बार देखो, तो अगर कनेक्शन स्लो है तो इट विल बी, मतलब आपका वो हो जाएगा, ऑडियो पे पूरा डाइवर्ट हो जाएगा. तो आप एक बार उसको ट्राई करो. हाँ, अभी आप ट्राई करो एक बार. Okay, now it is audible and am I visible to all of you? या परफेक्ट. अभी ट्राई करो, मैं ऑफ करता हूँ अपना ऑडियो. Okay. So learn to cut your losses, learn to average up.
if your investment is good, but somehow something is happening in between, you should learn and not be afraid to cut off your losses. कुछ भी हुआ, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, आपको दिख रहा है, सो लर्न टू कट योर लॉसेस. ठीक है, 100 का शेयर लिया, आज 50 हो गया, नहीं नहीं वो आएगा, वो 100 आएगा, 100 आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है. स्टॉक 50% गिर गया, इससे ज्यादा क्या गिरेगा? स्टॉक 50% गिर के भी और 100% गिर सकता है सर. सो यू शुड नो कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस प्ले आउट नहीं कर रही है, इट इज गोइंग रॉन्ग, तो देन यू शुड लर्न हाउ टू कट योर लॉस. इज अ वेरी बिग थिंग. ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि यू शुड नो एंड यू शुड लर्न हाउ टू कट योर लॉसेस एंड यू शुड एवरेज अप. स्टॉक जो ऊपर जाता है उसको एवरेज अप करना सीखो. वैल्यू इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट कि आपको 10 का शेयर 8 रुपए में मिल गया है तो आप ले लो. आप देखो कि 10 का शेयर 20 हो सकता है, अभी आपको 8 में मिल रहा है, और एवरेज अप करोगे. ठीक है, 8 में मैंने एलोकेशन किया, जितना डिजायर्ड एलोकेशन है उसका 5% किया, 10% किया, वॉट एवर. उसके बाद वो डेटा दिखा रहा है कि इट इज इंप्रूविंग. लर्न टू एवरेज अप, लर्न टू एवरेज अप. उसमें पैसा बनेगा. स्टॉक जो ऊपर आता है ना उसमें पैसा बनता है, बहुत जबरदस्त पैसा बनता है. स्टॉक जो नीचे जाता है उसमें एवरेज डाउन तब कर सकते हो जब आपको पता है कि वो नीचे क्यों जा रहा है. वो फंड सेलिंग से जा रहा है, इंस्टीट्यूशन सेलिंग से जा रहा है, या फंडामेंटल से जा रहा है. अगर वो फंडामेंटल से नहीं जा रहा है तो एवरेज डाउन करो. लेकिन अगर आपका डेटा बोल रहा है और आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, देन लर्न टू एवरेज अप. बहुत पैसा बनेगा सर. उसमें यू आर हैविंग टू थिंग्स, टू बेनिफिट्स. एक, आपको उसमें स्टडी है. सेकंड, आपकी थीसिस उसमें प्ले आउट कर रही है. थर्ड, मार्केट उसको प्रीमियम दे रहा है. सो द थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मार्केट ने उनको आइडेंटिफाई किया और मार्केट उसको प्रीमियम दे रहा है. तो लर्न टू एवरेज अप. हमें बीच का पोर्शन निकाल लेना है, वो खा लेना है. वो बीच का पोर्शन होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है. अगर जर्नी इतना बड़ा होता है ना तो बीच का पोर्शन खा लो. लर्न टू एवरेज अप. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वैल्यू इन्वेस्टिंग. वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी ऑफन मतलब ये निग्लेक्ट कर देते हैं ये थिंग कि भाई ठीक है यार ये ऊपर जा रहा है तो वी डोंट. वैल्यू इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है, नहीं. बट आज की वैल्यू इन्वेस्टिंग और पुरानी वैल्यू इन्वेस्टिंग में बहुत फर्क है. तो ओल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग इज ऑलमोस्ट डेड सर. वो नहीं कर सकते आप. आपको लग रहा है डेटा बोल रहा है स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, यू शुड एवरेज अप. So a famous saying from Walter Strauss, my goal was to keep losses down, and if I could catch a few stocks going up, compound returns would work their magic. So these two are very big thing जो हमें behavior से control करना है. You will learn. आपको तुरंत नहीं आएगा. It is very hard कि जो स्टॉक आपने 100 में लिया ना वो 150 हो जाए और आप उसको बाई करो. इट इज वेरी हार्ड मेंटली, इट इज वेरी हार्ड आयुष भाई. वो इतना इजी नहीं है. और मतलब ये भी मैंने 2-3 साल में मतलब इतना मेहनत करके सीखा है. मतलब ये सब जो लॉसेस खाए ना उससे ये सब सीखा है कि एवरेज अप इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग. और इट्स नॉट दैट इजी. आपको मेंटली बहुत शार्प रहना पड़ेगा कि 100 का शेयर है जो आपको पता है कि मैंने 100 रुपीज में लिया है, वो अभी 150 रुपीज है. तो मतलब देखो कि उसका फ्यूचर क्या लग रहा है आपको. डेटा बोल रहा है, आपके थीसिस प्ले आउट कर रहा है, देन लर्न टू एवरेज. अब आपको लग रहा है कि वो 500 होगा तो 100, 150, 200, 250 पे एवरेज अप करो. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. इफ योर थीसिस आर प्लेड आउट तो आप 100% उसमें एवरेज कर सकते हो. आई थिंक दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. सो लर्न टू कट योर लॉसेस एंड लर्न टू एवरेज अप. So next, your behavior is more important than market behavior. What market shows you वो एक प्राइस है. This is the real value. ये रियल वैल्यू है. This is market behavior. एक रियल वैल्यू होता है, वो स्टेबल होता है, वो धीरे धीरे कंपाउंड करता है. एक होता है मार्केट बिहेवियर, वो आपको रोज कुछ नया देगा. सो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से नॉइस क्या है और आपका इनर वॉइस क्या है. अगर आपने नॉइस पकड़ लिया फंस जाओगे. 1-2 बार शायद पैसा बना भी लोगे. मार्केट में कचरा भी चलता है, ऐसा नहीं है नहीं चलता है, पर बनाते लोग पैसा बनाते हैं, वो ठीक है. बट आप समझो कि आपका बिहेवियर क्या बोल रहा है. आपका बिहेवियर बोल रहा है कि आप इतनी वॉलेटिलिटी सह सकते हो. आपका बिहेवियर बोल रहा है कि आप हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो. देन गो. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक. ऐसा कुछ नहीं होता है सर. ये सब बुक्स में आता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं होता. अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो आप करो. डोंट बी इन अ स्टीरियोटाइप. ब्रेक द स्टीरियोटाइप. बट योर बिहेवियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन मार्केट बिहेवियर. मार्केट कुछ हमेशा नया लाएगा सर. आप कंफ्यूज हो जाएगा, आपका दिमाग इतना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा. सो यू शुड स्टिक टू योर बिहेवियर. आपका बिहेवियर क्या बोल रहा है, आपको क्या चाहिए.
आप क्या कर सकते हो, क्या चीज आपके लिए वर्क कर रही है। आपको ट्रेडिंग अच्छा लगता है, ट्रेडिंग करो। टेक्निकल अच्छा लगता है, टेक्निकल करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छी लगती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। वैल्यू इन्वेस्टिंग अच्छी लगती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। बट वही करो जो आपको सूट होता है, योर बिहेवियर। यू शुड फोकस ऑन योर बिहेवियर अदर देन व्हाट मार्केट इज शोइंग। मार्केट में 3-4 सेक्टर चल रहे हैं, आपका बिहेवियर बोल रहा है कि नो यू आर नॉट गुड एट दैट, तो आपको आपको उससे रिएक्शन नहीं करना है। ठीक है, लर्निंग लो, लेकिन डायरेक्टली उसमें अर्निंग के लिए जंप मत कर जाओ सर। सो आई थिंक योर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्केट action. So your behavior is more important than what market's behavior is. This is a very, very, very beautiful and important trait. So what Benjamin Graham says, Mr. Market is here to serve you, not to guide you. Market से आपको कोई guidance नहीं मिलेगा. This is the real value. This is market's behavior. So what should be your behavior? You should know that. So your behavior is very important than market's behavior. Next. See, FOMO. फोमोस फेवरेट वेपन इज कंपैरिजन। वो आपको शर्मिंदगी में रख देगा कि सर माय रिटर्न्स आर नॉट एट पार, और मार्केट बीटिंग रिटर्न्स नहीं है। सर आपको मार्केट को बीट नहीं करना है सर, मार्केट से आपकी कोई रेस नहीं है सर। सर योर रेस इज विद इन योर सेल्फ, विथ योर सेल्फ। आप क्या कर रहे हो, आपका पास्ट 3 साल का रिटर्न है 5%, इट्स ओके। आप कुछ अच्छा सीखे, आपका नेक्स्ट 3 इयर्स का रिटर्न 10% होगा, तो ट्रेड इज डबल्ड। ठीक है, मार्केट का रिटर्न शायद बीट नहीं कर पाए आप, लेकिन इंप्रूव योर सेल्फ। आपको कंपैरिजन ऐसे करोगे ना सर, सो आप फोमो में रहोगे। आप हमेशा हॉट स्टॉक को चेस करोगे, मार्केट 12% रिटर्न दे रहा है तो मुझे कंपाउंड करना है 15% पे, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको पता है कि आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न लास्ट 5-7 ईयर्स में 9% है, एंड यू हैव टू ग्रो फ्रॉम 9% टू 12%, आप पैसा बनाओगे, आप भटकोगे नहीं। बट अगर आपने कंपैरिजन कर लिया फोमो में कि सर पड़ोसी क्या बना रहा है, पड़ोसी ने येस बैंक लेके, एग्जांपल येस बैंक लेके 2 महीने में डबल कर लिया, तो सर वो कर सकता है, ठीक है। आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। मार्केट बता रहा है मार्केट 26,000 का 40,000 हो गया, बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा है, तो ठीक है, एक्सेप्ट करो सर। बट आपकी रेस मार्केट से नहीं है, आपकी रेस खुद से है कि आपकी क्या मिस्टेक्स है, आपकी क्या रिटर्न्स है, आपको उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। लर्न दैट। हमेशा मार्केट को बीट करने जाओगे सर तो मार्केट को एक समझो मार्केट जो होता है इट्स अ कंपोजिशन। सेंसेक्स में सिर्फ 30 कंपनी है, निफ्टी में सिर्फ 50 कंपनी, वो पूरा पिक्चर नहीं बताएगा आपको। सो आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते इतना। ठीक है, वो चल रहा है, दैट इज गुड, ओके। बट आपकी कंपनीज क्या कर रही है, आपके रिटर्न्स क्या कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट मार्केट इज डूइंग। सो you should focus on your returns, you should focus on your performance rather than you should try and beat market returns in FOMO. With knowledge and with patience you can do it, but with FOMO I don't think it's sustainable, और long term के लिए आप कभी नहीं कर पाओगे। Next, volatility in stock prices is not the real risk, वो market behavior है सर। Volatility in business fundamentals is the real risk. Business fundamentals क्या बोल रहा है? If the business fundamentals are deteriorating, business में कुछ लोचा है, फिर भी स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, वो ठीक है सर, वो कोई गेम होती है, वो हमें नहीं समझ में आती है, उसके ऊपर ध्यान मत दो। फंडामेंटल्स गिर रहे, यू शुड एग्जिट। फंडामेंटल्स गिर रहे और आपको लग रहा है टेम्पररी नहीं है, लॉन्ग टर्म का सिनारियो है, यू शुड एग्जिट। वॉलेटिलिटी इन स्टॉक प्राइस वो रियल रिस्क है ही नहीं सर। सर वो तो एवरीडे आपको कुछ ना कुछ मार्केट शो करेगा, एवरीडे मार्केट विल गिव यू सम न्यू प्राइस, आपको एक न्यू अवतार मिलेगा उसका, लेकिन वो रियल रिस्क नहीं है सर। इफ अगर आपको लग रहा है आपने 100 में कोई शेयर लिया, वो 70 रुपीज हो गया या 130 हो गया, वो उसकी रियल वैल्यू है ही नहीं सर, वो मार्केट बिहेवियर है। ठीक है, यू शुड आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा सर। वॉलेटिलिटी इन बिजनेस फंडामेंटल्स, उसका ईपीएस गिर रहा है, आरओसी गिर रहा है, बिजनेस में कुछ खराब हो रहा है, उसके प्रमोटर्स कुछ झोल कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कुछ हो रहा है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कुछ गड़बड़ आ रही है, तो वो सब चेक करो सर। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें फंडामेंटल्स वीक हो रहा है, देन यू शुड टेक अ हार्ड कॉल, तब आपको लेना पड़ेगा। सो द रियल रिस्क इज नॉट इन द वॉलेटिलिटी, वो ठीक है एक प्राइस है, बट द मेन रिस्क इज बिजनेस फंडामेंटल्स। अगर वो खराब हो रहा है, सो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, फिर कुछ गड़बड़ है, आपको देखना पड़ेगा सर। So in my view, the biggest investment risk is not the volatility of prices, but whether you will suffer a permanent loss of capital. Not only is the mere drop in stock price not risk, but it is an opportunity. Where else do you look for cheap stock? Lee Lu, yes, उन्होंने ये बोला था। So अगर एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स खराब नहीं है, लेकिन ड्यू टू फंड सेलिंग इट इज गोइंग डाउन, एवरेज डाउन, nothing wrong in it. If fundamentals are good, you can hold the stock. If fundamentals are bad and if the stock is still going up, कुछ गड़बड़ है, समझ जाओ क्या गड़बड़ है, वो implied
समझ जाओ, लेकिन एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक, वो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉलेटिलिटी इन स्टॉक प्राइसेस इज नॉट रियल रिस्क इज वॉलेटिलिटी इन बिजनेस फंडामेंटल्स। डेटा क्या बोल रहा है, चेक द डेटा, कनेक्ट इट विथ मार्केट रियलिटी। नेक्स्ट, okay, so this is my investment checklist, very basic, but I think it covers most of the things which I wanted to know. First of all, I check कि क्या वो कंपनी, वो सेक्टर, whether the company or sector is falling within the within my circle of competence or not. If yes, then I move forward. If not, straight away buy, straight away buy. चेकलिस्ट ऐसे रखो कि आपको 500 स्टॉक्स भी कोई दे देना कि इसमें से कुछ अच्छा स्टॉक निकलना है, तो चेकलिस्ट पे ही 300-400 स्टॉक तो स्क्रीनर से ही निकल जाने चाहिए। रिस्क जितनी रिफाइंड होगी, आपका डिसीजन उतना अच्छा बैठेगा, आपका एलोकेशन उतना अच्छा बैठेगा। आप जितने स्टॉक्स पे ज्यादा घूमोगे उतना एलोकेशन और माइंडसेट आपका खराब होगा। तो आपकी लिस्ट ऐसी होनी चाहिए, चेकलिस्ट, कि आप ज्यादा से ज्यादा, अ गुड इन्वेस्टर इज द इन्वेस्टर हु सेज नो टू मोस्ट ऑफ द स्टॉक आइडियाज। नो, लर्न टू से नो टू मैक्सिमम स्टॉक आइडियाज। जो अच्छी है उसके ऊपर फोकस करो, बी लाइक अर्जुन, उसके ऊपर फोकस करो कि क्या है, क्या मुझे पक्षी की आंख दिख रही है, 500 स्टॉक्स है नहीं, पर अच्छा स्टॉक ये है जिसमें जो मुझे समझ में आता है, गो विद दैट। सेकंड, इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री क्या कर रही है, पोर्टर्स 5 प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे होता है। थर्ड थिंग, बिजनेस क्या कर रहा है। फर्स्ट हो गया मुझे क्या समझ में आता है, सेकंड हो गया इंडस्ट्री क्या कर रहा है, थर्ड हो गया इंडस्ट्री का वो बिजनेस क्या कर रहा है, वो कहां से आएगा, पैट डोरसे के मोट से आएगा। ठीक है, सब कंपनी में मोट नहीं मिलेंगे आपको, कोई में छोटा मोट मिलेगा, नैरो मोट मिलेंगे, कोई में अच्छा आपको मतलब बिग कम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, लो कॉस्ट प्राइसिंग हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी हो सकता है, वो लो स्विचिंग कॉस्ट हो सकता है, हाई स्विचिंग कॉस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो सबसे पहले मुझे क्या समझ में आता है, उसके बाद सेक्टर क्या कर रहा है, उसके बाद सेक्टर में से बिजनेस क्या कर रहा है, उसके बाद मैनेजमेंट ने क्या किया है अब तक, और मैनेजमेंट के फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है। अगर मैनेजमेंट ने पास्ट में कुछ बोला है, वो करके दिखाया है, तो चलो ठीक है, आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। उसकी हिस्ट्री क्या है, 10 to 15 ईयर्स हिस्ट्री इज मस्ट। आपको मैनेजमेंट में उतना एक्सपीरियंस चाहिए कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट यंग है, एंथुजियास्टिक है, मैनेजमेंट को बिजनेस ऊपर ले जाना है, क्या कर रहा है। बहुत बार होता है कि फर्स्ट जनरेशन अच्छा होता है, सेकंड जनरेशन नहीं अच्छा होता है। देयर आर मेनी 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 एग्जांपल्स जिसमें सेकंड थर्ड जनरेशन अच्छा स्केल अप नहीं कर पाती है। सो चेक करो कि मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करना है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, जो बोल रही है वो कर रही है, वो किया है, फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, यू शुड नो दैट। और उसके अकाउंटिंग्स देखो कि डेटा बोल रहा है उससे, अकाउंटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम है, बहुत बार बिजनेस आपको अच्छा मिलेगा, मैनेजमेंट ठीक ठाक मिलेगा, पर अकाउंटिंग तो पूरा खिचड़ी मिलेगा आपको सर। तो सर मुंह पे बहुत लोग अच्छे होते हैं, वो फोर्ब्स की मैगजीन पे आ जाएंगे, वो टाइम्स की मैगजीन पे आ जाएंगे, बट इट डजंट मीन कि वो एथिकल हो गए या फिर वो अच्छे हो गए। आई एम नॉट सेइंग कि कोई बुरा है कोई अच्छा है, आपको सिर्फ डेटा देखना है। आप अगर डेटा बोल रहा है तो कनेक्ट करो उससे। रनवे एंड वैल्यूएशन, फिर रनवे देखो कि आपको इन्वेस्ट 1 साल के लिए कर रहे हो, आप 2 साल के लिए कर रहे हो, 3 साल के लिए कर रहे हो, आपका रनवे लॉन्ग है, तो रनवे चेक करो कि ये ट्रेंड है तो ये 10 ईयर्स तक ये दिखेगा, 20 ईयर्स तक ये दिखेगा, 5 ईयर्स ये दिखेगा। अगर दिख रहा है आपको तो गो फॉर दैट। फिर वैल्यूएशन देखो, वैल्यूएशन क्या है। अगर आज आपको लग रहा है कि इसकी वैल्यूएशन हाई है, लेकिन फ्यूचर में इसकी वैल्यूएशन और प्रीमियम पे मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, कैसे नहीं मिल सकती है, आपको दोनों देखना पड़ेगा। सो ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वैल्यूएशन पता चलेगा कि ये हाई पी पर है फिर भी ये सस्टेन करेगा, ये लो पी पर है फिर भी सस्टेन नहीं करेगा। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे कि इसका फ्यूचर का वैल्यू क्या, कैश जनरेशन होगा और इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। और उसके बाद बिहेवियरल चेक, पीस ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट देन पीस ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप अगर उस इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छे समय तक अपडेट रह के सो सकते हो, आप अच्छा पैसा बनाओगे। लेकिन अगर पीसफुल इन्वेस्टिंग नहीं है तो आप बीच में कुछ भी गलत होगा, आप एग्जिट कर लोगे सर। इस पे आपको आज के जमाने में ये मतलब यू शुड नो कि आपका पीस ऑफ माइंड किस में है। आप चेस करोगे हॉट स्टॉक को और आपको 3-4 दिन में अच्छा नहीं मिलेगा, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपका हार्ड एंड मनी उसके ऊपर लगा है, आप नहीं कर पाओगे इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए, आप निकल जाओगे और फिर बोलेंगे कि मार्केट ऐसा ही है। नहीं सर, पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट देन पीस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले चेक करो कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करके मुझे शांति मिलेगी,
मैं इसके ऊपर बैठ पाऊंगा लॉन्ग समय तक, अपडेट रह के सो पाऊंगा? इफ यस, देन ओनली गो फॉर इट, अदरवाइज अवॉइड। कितनी भी माउथ वाटरिंग अपॉर्चुनिटी हो, इफ आपको लग रहा है आप इसके ऊपर नहीं कंट्रोल कर सकते हो आपका बिहेवियर, यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। सूनर और लेटर मार्केट वॉलेटिलिटी में एक फेज आएगा जो अच्छा स्टॉक भी नीचे जाएगा, तब आप पैनिक करोगे और आप एग्जिट करोगे, आपका हार्ड अर्न मनी लॉस होगा। जब तक अपना मनी नहीं गवाओगे सीखोगे नहीं, बट ऐसे चीजों में नहीं गवाओ जिसमें आपको पहले से पता है कि आप 50-50 रिस्क में हो, जिसमें आप 80-20 रिस्क ले सकते हो, उसमें ही लो। So this is very important, your behavioral check should be very important. Peace of mind should be greater than the piece of investment which you are holding or which you are going to hold. And yes, checklist is most important, but it should not be the substitute for thinking. Mind हमेशा खुला रखो। Yes, ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, ये सेक्टर अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ बुरा भी हो सकता है। चेकलिस्ट पे फोकस करो, लेकिन थिंकिंग भी रखो। यस, कुछ इनोवेटिव हो रहा है तो लुक एट दैट। वो डेटा, उसमें डेटा नहीं बोलेगा आपको, उसमें पहले मैक्रो बोलेगा। मैक्रो ट्रेंड आपको विजिबल होगा। अमेरिका में 10-20 ईयर्स पहले क्या हुआ था, वो इंडिया में हो सकता है? उसमें आपको डेटा अभी कुछ नहीं बोलेगा, उसमें पास्ट ही कनेक्ट करना पड़ेगा। वो चेकलिस्ट से आएगा ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पास्ट ट्रेंड्स चेक करने पड़ेंगे, तभी आएगा कि अमेरिका में 20 ईयर्स पहले, एग्जाम्पल कोई भी कंट्री में 20 ईयर्स पहले टीवी का क्रेज चला, वो इंडिया में आ सकता है। एयर कूलिंग का क्रेज चला, वो इंडिया में आ सकता है। तो कैसे आ सकता है? इतनी जीडीपी है, इतने परसेंटेज ऑफ लोग है, इतने घर है। ये बहुत इजी है कि सर चाइना में पर कैपिटा कंजम्पशन चॉकलेट्स का या फिर टीवी का या फिर फ्रिज का इतना ज्यादा है, तो इंडिया को उसके सामने एकदम पेनी है। पर सर देखो उनकी इनकम क्या है, उनके कितने लोग डेवलप्ड है, कितना परसेंटेज ऑफ द लोग के पास घर है, और उसका कंपैरिजन इंडिया के साथ करो। इंडिया में आज भी एक घर में 5-5, 10-10 लोग रहते हैं। दैट इज द क्रूअल रियलिटी। वहां पे बहुत से लोग हैं, ज्यादातर परसेंटेज क्या है, लोग सेपरेट रहते हैं, लोग न्यूक्लियर रहते हैं। तो वो आपको दिखे, उसके साथ कनेक्ट करो। सिर्फ डेटा पे ब्लाइंडली बिलीव मत करो। किसी ने बोल दिया कि सर अमेरिका में इसका इक्विटी लेवल इतना है, लोग 70% इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में अभी वो 5% है, तो आपको वो दिखना चाहिए। तो 5% क्यों है, और 70% क्यों है? इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स कितने हैं उधर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उधर का, इधर कितनी अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्ट करने के लिए, वो पूरा पिक्चर देखना पड़ता है आपको। फिर कनेक्ट करो कि ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए है ठीक है, फैंसी लग रहा है ठीक है, सस्टेन करेगा लॉन्ग टर्म के लिए, फिर उसमें कंपनी ढूंढो। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आप हमेशा मिरेज में रहोगे, वो डियर की तरह। जैसे मैंने बोला, आपको सब जगह पानी दिखेगा, आप सब जगह भागते रहोगे, लेकिन आपको कोई स्टॉक नहीं मिलेगा। आप लंबे समय के लिए होल्ड नहीं कर पाओगे, और आप टिप्स पे जाओगे, आप इन्फो पे जाओगे, इनसाइट्स पे नहीं जाओगे। सो इनसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देन इंफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट, दिस ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा गया है, वेरी रिपीटेबल क्वेश्चन। एंड सो अ फ्यू बुक्स which is very important, I think, or they have taught me very, very, very beautiful lessons. So these are the list of books. If anyone wants to buy, then they can buy from anywhere, a shop or Amazon or Flipkart. So I think these are the books which one investor must read. लर्निंग तो मिस्टर मार्केट ही सबसे ज्यादा देगा, बुक्स नहीं देंगे इतना, लेकिन दिस आर द रेडीमेड लर्निंग्स, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। यू विल गेट टू नो कि आपको क्या नहीं करना है, वो ज्यादा शार्प होगा, आपको कन्विक्शन बैठेगा। So these are the few books, and yes, I highly recommend a book, Master Class with Super Investor, Vishal Mittal and written by Vishal Mittal and Saurabh Basra है। See, I am no way, मतलब मैं कोई उनसे जुड़ा नहीं हूँ, I am no way in associated with them, मुझे कोई कमीशन भी नहीं मिल रहा है, बट आई हैव रेड दिस बुक मेनी टाइम, बिकॉज इसमें एवरी टाइम कुछ मैं सुनता हूँ ना, मुझे कुछ अलग मिलता है। मतलब एवरी टाइम आई रीड, मतलब कुछ अलग मिलता है। कभी कभी मैं मेरे ब्रदर को भी बोलता हूँ कि बस मैं सो रहा हूँ, आप इसकी 2-3 लाइन पढ़ लो, आप 2-3 पैराग्राफ पढ़ लो। इसमें इतना इंसाइट्स है सर, इतना इंसाइट्स है कि आप एक बार में रीड करोगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा। आप 5 बार रीड करोगे ना, तो एवरी टाइम आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा सर। रेडीमेड एक्सपीरियंस ऑफ 10-11 गुड इन्वेस्टर्स। सो आई थिंक इंडियन कंसेप्ट के लिए बहुत सारी बुक नहीं लिखी गई है। इंडियन कंटेक्स्ट में सर आपको बुक कितना मिलेगा, 2-3 बुक मिलेगा हार्डली। तो ये बुक बहुत अच्छा है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये बुक लो। तो देन इट्स योर विश, यू विल गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस। या नेक्स्ट आयुष भाई। Yeah. So as I say, your not to do list should be greater than or more important than your to do list. So don't invest in any company जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, जिसमें
नो और लो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, आपको मोट नहीं मिले, ठीक है, मोट बहुत टाइप के हो सकता है, लेकिन इफ यू आर, आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो लुक फॉर बिजनेस विच इज हैविंग ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, which are not highly leveraged, not more capex driven, where the promoter is also having skin in the game. Non-core diversification is a wide topic. Diversification होता है सबसे पहले, वो एक फ्लैग है, रेड या ग्रीन, वो लॉन्ग बाद में ही पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो क्या साबित हुआ। सो अगर कोई कंपनी डाइवर्सिफाई करती है तो लुक एट दैट थिंग कि नॉन कोर डाइवर्सिफिकेशन है या कोर डाइवर्सिफिकेशन है, अपनी कॉम्पिटेंस में वो डाइवर्सिफाई कर रहा है या नॉन कोर कॉम्पिटेंस में वो डाइवर्सिफाई कर रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कंपनीज हु बर्न सिग्निफिकेंट कैश देन इट कंज्यूम्स, सो वो एक फ्लैग है, आपको उसको देखना पड़ा, यू शुड लुक एट दैट फ्लैग सीरियसली। बिजनेस फेसिंग मैक्रो हेडविंड्स, सी इंडिया इज अ वेरी प्रॉमिसिंग कंट्री, लेकिन इंडिया में टेक्सटाइल प्लॉट, दिस इज एन एग्जांपल बाय द वे, टेक्सटाइल प्लॉट, वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दे स्टोल द टेक्सटाइल प्लॉट फ्रॉम अस। हमारा पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फोकस दे स्टोल फ्रॉम अस, एंड ऑन द अदर हैंड हमारी गवर्नमेंट ने टफ सब्सिडीज भी यहाँ से एबॉलिश कर दी, रिमूव कर दी। सो इंडिया का जो भी टेलविंड्स मिलना चाहिए था वो पूरा हेडविंड्स में कन्वर्ट हो गया, इंडिया कभी वो फायदा ले ही नहीं पाया। और आप लास्ट 3-5 इयर्स में देख लो कितनी अच्छी अच्छी टेक्सटाइल कंपनीज है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, आपको हार्डली कोई मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कंपनी अच्छा है, प्रमोटर अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छा है, कैश फ्लोज अच्छे है, लेकिन हेडविंड्स है तो सस्टेनेबिलिटी इश्यूज है। अगर वो इश्यूज है तो आप उसको देखो, हाँ वो परमानेंट है तो फिर एग्जिट करो, और परमानेंट नहीं है वो आपको लग रहा है कि वो टेम्पररी 1 या 2 साल के लिए है, तो उसमें देखो कि हेडविंड्स बहुत टाइप की होती है सर, 1 साल के लिए होती है, 2 साल के लिए होती है, परमानेंट होती है, टेम्पररी होती है। सो देखो अगर वो परमानेंट है तो टेक अ हार्ड कॉल ले लो, अगर परमानेंट नहीं है तो स्टिक टू योर बेसिक, सिट ऑन योर एस और उसको कंपाउंड करने दो। Stay away from cyclical stocks. If you know how to enter and how to exit, then only you should invest in sugar, cement, steel, hotels, etc. Cyclical stock में सर अगर आपका एंट्री एग्जिट बराबर नहीं हुआ तो आपको लॉस होगा, ठीक है, 1-2 बार आप कमा भी लोगे, बट अगर इफ यू डोंट नो हाउ टू प्ले दैट स्टॉक, इफ यू आर नॉट गुड एट एंट्री एंड एग्जिट, उसमें आपको टेक्निकल्स बहुत कम आएगा सर। आई एम अ वैल्यू इन्वेस्टर, आई एम अ फंडामेंटल इन्वेस्टर, बट नो बायस माइंडसेट। टेक्निकल्स जिसमें इंपॉर्टेंट है उसमें इंपॉर्टेंट है सर, आई हैव नो बायस माइंडसेट ऑन एनीथिंग। सो अगर आपको समझ में आता है तो इन्वेस्ट करो, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम सिक्लिकल बिजनेस। 10 का सर 100 भी होगा, 100 का सर फिर से 10 भी हो जाएगा सर। अगर आपका एंट्री बीच में है, आपने क्रीम खा लिया तो अच्छा है, अगर क्रीम नहीं खा सके तो वो क्रीम जम जाएगा ना, जब वो पता नहीं चलेगा आपको सर, वो लॉस करके देगा आपको। सो स्टे अवे फ्रॉम दैट। अ ग्रेट जॉकी राइडिंग अ डोंकी, ग्रेट जॉकी अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन बिजनेस इतना अच्छा नहीं है। एग्जांपल एयरलाइंस बिजनेस, बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एयरलाइंस बिजनेस इज डेड लेटेड, हाईली केपेक्स ड्रिवन, और कोई प्राइसिंग पावर नहीं है। आपको आज एक फ्लाइट 5000 में मिल रही है, वही सेम फ्लाइट आपको दूसरी कंपनी से 4900 में मिलेगी, तो हम 4900 वाली सिलेक्ट कर लेंगे। नो प्राइसिंग पावर कोई, और इतना डेट लेटेड हाईली केपेक्स ड्रिवन बिजनेसेस, स्टे अवे फ्रॉम दैट। उसमें बिजनेस लॉन्ग टर्म कंपाउंड करना दैट इज वेरी टफ। आपको लग रहा है कि वो बिजनेस कमा रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए कितना कमा रहा है दैट इज मोर इंपोर्टेंट, बिकॉज वी आर शेयर होल्डर्स। लास्ट में हमें शेयर मिलने वाला है, हमें बिजनेस के अंदर शेयर थ्रू परसेंटेज मिलेगा, वो बिजनेस के अंदर डे टू डे प्रॉफिट में हमारा कोई हिस्सा नहीं है सर। तो यू शुड नो कि बिजनेस कैसा है और जॉकी कैसा है उसका। तो अगर 2 कंपैरिजन मिल रहा है तभी आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा सर। सीरियल डाइल्यूटर्स ऑफ कैपिटल, आप देखो कंपनी की लास्ट 10-15-20 ईयर्स में कंपनी ने कितनी बार इक्विटी डाइल्यूट की है, शेयर वारंट्स की है, प्रेफरेंशियल इश्यूज की है। ये गलत नहीं है, बुरा भी नहीं है, लेकिन देखो कि उसमें से उन्होंने कितना कैसे ऑक्यूपाई किया है और क्या उन्होंने डेवलप किया है। अगर उनका प्रेफरेंशियल किया है, उन्होंने क्यूआईपी कर रहे हैं, इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, क्या अर्निंग्स है, क्या आरओसी है। अगर वो नहीं मैच हो रहा है ना तो फिर सीरियस इश्यू है सर, सीरियस इश्यूज है। अगर वो मैच हो रहा है तो इट्स ओके, चलने दो जब तक चलता है। अकाउंटिंग जगलरीज, हाईली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, नेगेटिव कैश फ्लोज, ऐसे बिजनेस को डायरेक्ट अवॉइड नहीं करना है। दिस इज, ये नॉट टू डू लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि इसको डायरेक्ट आप सीधा टिक करके अवॉइड कर लो, नहीं, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद चेक करो कि इसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो किस हिसाब से है, कैसे है, किसको दिया है। अगर उसमें कुछ आपको ब्लैक या रेड फ्लैग दिखे, देन टेक अ हार्श कॉल।
अदरवाइज ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ नेचर, वो पार्ट ऑफ अ बिजनेस, वो करते हैं ये लोग, बट आप देखो कि उसमें कैसे किया है, किस चीज के लिए किया है। सो अकाउंटिंग जगलर ये सब, ये बहुत हार्ड हार्ड लगता है, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है। फॉरेंसिक सब बोलते हैं हार्ड है। फॉरेंसिक इज ऑल अबाउट टू थिंग्स, पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ से जाता है। इंडिया में सब कोई कर सकता है, लेकिन यही है कि लैंग्वेज इतना हार्ड है ना, इंग्लिश, थोड़े थोड़े वर्ड इतने हार्ड दे दिए ना कि हमें लगता है कि दिस इज वेरी टफ, बट दिस इज नॉट एट ऑल टफ। इंडिया का 80% पॉपुलेशन को पता है कि पैसा कैसे कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। दिस इज अ सिंपल मीनिंग, सिंपल फॉर्मूला, फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या है। लेकिन इंग्लिश में आपको देते हैं ना इतना बड़ा बड़ा शब्द, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। चलो ठीक है, इसको नहीं करना है, इससे हम डर जाते हैं। नहीं, कोई डरना नहीं है सर, आपको ये कोई भी कर सकता है। आपको थोड़ी बुक्स रीड करनी है, थोड़ी अकाउंटिंग लैंग्वेज समझनी है, आप पहले से ज्यादा अपनी स्किल शार्प कर लोगे। सिर्फ 100 बैलेंस शीट रीड करोगे ना सर, 100 बैलेंस शीट, आपको 110%, 80-90% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग है क्या, कितना ईजी है, कहाँ से पैसा आ रहा है वो सब वे पता करना है, कहाँ पे पैसा जा रहा है वो वे पता करना है। सिंपल है, कुछ ऐसा है नहीं। देर इज नथिंग लाइक, ये सब आके बोलते हैं ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई हार्ड नहीं है सर। कोई कर सकते हो आप, आपको देसी लैंग्वेज में दे देना, अपने रीजनल लैंग्वेज में, तो कोई भी इंसान कर लेगा। सो तो थोड़ा थोड़ा फोकस करो एंड यू वुड बी एबल टू डू एंड नो व्हाट फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज वी थिंक। एंड आरओसी, देखो आरओसी इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ योर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज लेस देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप वो बिजनेस क्यों कर रहे हो सर? इट इज वेरी सिंपल, क्यों कर रहे हो? तो देखो कि उसमें क्या चल रहा है, उसमें कुछ लोचा है। अगर इफ यू आर, अगर उसमें कुछ आपको लोचा मिले तो एग्जिट। अगर उसमें आपको नहीं मिले और लग रहा है कि ये फ्यूचर में ग्रो करेगा, अभी ठीक है नहीं कर रहा है, अभी उसका केपेक्स चल रहा है, तो केपेक्स क्या चल रहा है, ऑथेंटिकली चल रहा है, या फिर प्रोमोटर अपने जेब में पैसा डाल रहा है, आप देखो। इफ दैट थिंग इज, इफ गुड थिंग्स आर बाउंड टू हैपन इन फ्यूचर, तो वेट करो। अगर आपको गट फीलिंग है, अगर आपको डेटा लग रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि आरओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नीचे है और ये ऐसा ही रहेगा और प्रमोटर कुछ जोल कर रहा है, तो एग्जिट, स्ट्रेट अवे एग्जिट। नेक्स्ट, okay, so the most important thing of our presentation is know yourself before you know stock market. Invest in yourself, आप खुद में इन्वेस्ट करो सबसे पहले, तो खुद को जान लिया तो सबको जान लिया। invest in yourself before you invest in stock market, except on the very first day that volatility of stock market is the nature of stock market. Accept the volatility on the very first day. The volatility is the nature of stock market, because even a flat line on ECG means you are dead, the person is dead. Volatility is not the real risk. Volatility in fundamentals is the real risk. Volatility in stock price is not. So accept it on the very first day. This is my personal advice to all the beings who are just starting up in stock market, that invest in yourself. Know stock market, know yourself before you know stock market. Know yourself before you know stock market. Accept the volatility. Volatility is not the real risk. It is the nature of the market. Even a flat line on ECG means the person is dead. So a famous saying from Charlie Munger goes like that: all I want to know is where I'm going to die, so I will never go there. So accept the reality. मिरेज में मत आइए, रियलिटी एक्सेप्ट कीजिए। इट इज सिंपल, लेकिन दिखता नहीं है। सो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू वुड बी एंड यू विल बी एबल टू वर्क very good and you will be able to go places in stock market. Stock market is not get rich quick scheme. Stock market is all about get rich slowly, steadily but surely scheme. So this is a very simple saying from this is my experience, that if you are trapped in the volatility of stock prices in stock market, then I think you're gone, sir. You shouldn't be in the stock market or in direct equity. You should find some different avenues to invest your hard-earned money. So accept this on the very first day, because even a flat line on ECG means the person is dead. So thank you. So that's all from my side. Let's begin the Q&A. So Ayush bhai, I am done with few of my learnings. Hope everyone liked the content.
I've spoken my heart out. So, Meet bhai, I liked a lot and learned a lot of the presentation. Guys, what I'll do is we'll take a 5 minutes break, and until then, after 5 minutes break, we'll start the Q&A. So, in this 5 minutes break, what we'll do is first we'll brief you about Finvents, and then we'll announce the second winner of our giveaway. After that, we'll be starting the Q&A. So please stay with us. Please don't go anywhere. So today's presentation, like I said, was with Meet Bhai, and we'll not take a lot of time. So Finvents, we basically now have an active mailing list of around 2,000 people. When we started, we were at I think around 200 people, and we've done more than 10 events till now. We have an early access offer going, which right now is at a discount. Today, 12 a.m. in the night, the offer will end. So that offer will end now. That offer will not be available after 12 a.m. in the night today. And we are proud to associate with some 20 speakers for 2021. I'll just tell you about these 20 speakers. And we successfully have launched finvents.in. That is our website. Finvents.in is our website. And now, after Meets event, we have two more events planned for December 2020. These are also free events. And in 2021, basically doing 12 events and 36 paid events. So the 12 free events will be free to attend for everybody. You will just have to register with us. You will not have to make any payments or anything like that. You will just have to register with us and you can attend those 12 free events. And we'll be soon providing a screener.in template like many people are providing. There's a Safal Niveshak template and there's one by Dr. Vijay Malik. So we are also working on our screener.in template. We'll be providing it very soon to you guys. Hopefully we are trying that we won't be charging for that to anybody. So we are making a very full-fledged template. And our objective as at finvents.in is to make it a full-fledged social media platform for investors. Now, these are our prospective list of speakers for 2021. There may be some changes till December, so some names may be added or deleted, but these are our unofficial list which is right now with us. And basically lots are present today. Abhi is telling me, so most of the speakers are present today. So most of our speakers are present today in this presentation, and this is a little bit about the access offer. This offer will be ending today at 12 a.m. Tonight 12 a.m. it will be ending. So after that we won't be having any early access offer. After that it will just our subscription will start straight away in January. So you'll get a 500 rupees benefit. You'll get a free ebook. I'll take a session with the people. I've already taken a session on 16th. I'll be taking a session again with the people who joined today and those who miss the session on 16th. Then you'll have your own WhatsApp group. You'll get the beta features of our social media network, which is already there. I think some people have already joined on that network. You'll get the features there. Then this is basically the benefits. We'll be making you all this, so I want to go through this as soon as possible. I don't want to take everybody's time, but that is about it from my end. Just give me 1 second. Okay, so Meet bhai, we will start the Q&A now. So if you want, we can start the Q&A. We can first take the questions which have come on email. Then we can go for, oh, sorry, I forgot. We had to do the giveaway. Just give me 1 second. I thought I had forgotten something.
Okay, guys. So the second winner of our giveaway is Mr. Sanjay Kumar. We'll be contacting Mr. Sanjay Kumar after the presentation. And now what we will do is we'll go straight away to the Q&A. So I'll stop sharing my screen. We'll go straight away to the Q&A. And basically, Meet bhai, if you're ready, just unmute yourself and I'll ask you the questions which have come up in the email first. Or if you want, we can take the questions which have come up in the Twitter AMA that you did first. Like whatever is your choice. I'm comfortable with anything. So we'll take the email questions first because there are only 6 questions that came in the email. And after that, we will go for the Twitter AMA. And there is one question which came in the AMA as well as the email. So we'll take that question in the AMA only. Okay. Okay. So the first question is, which are the top 3 sectors to invest in right now? Which sector holds maximum value portfolio? Which sector are experiencing tailwinds right now, and how would you allocate your funds towards these sectors? What is the mindset and methodology used behind this allocation? Do Okay. you want me to WhatsApp you the question? No. It's okay. I understood. Okay, I have just WhatsApp you also. So just check the first question. Just check the first. There are 6 questions. Just check the first question. I am repeating it again. What are the top 3 sectors to invest in? This is actually 4 questions he has compiled in one. The person who is asking, what are the top 3 sectors to invest in? Which sector holds the maximum value in your portfolio? Which sector are experiencing tailwinds right now? And how do you allocate your funds towards these sectors? What is your mindset and methodology behind this allocation? Okay. So the top 3 sectors which are in my portfolio currently is first is insurance. I am highly bullish on insurance. I am highly bullish on a cooling segment, air cooling segment, and air purity segment, and ready to heat and ready to eat market. So these are the top 3 sectors which holds a good amount of my portfolio, and hope I will be able to hold them for dear long. So let's hope for the best. What was the next question? The next was, which of these sectors is the maximum weightage in portfolio? Which of these 3 has the maximum? All three are having equal allocations. All 3 are having equal allocation. Okay, and according to you, which sector is having a tailwind right now? Tailwind right now, insurance. And how would Ready to one eat market, allocate? spices market. Ready to eat market, spices market, women emancipation fashion theme, means white goods, durables, consumer durables, good top-notch companies, ready to eat market, ready to heat, 60 seconds market. So these are the few sectors which I am highly bullish on them for long term. Okay. And it holds equal allocation to my portfolio. I am not that kind of investor कि एक में 25% लगा दूं. No. They are having equal allocation. Okay. Just hold on a second. When it is possible, just mute the person. Just hold on, Amit bhai, just is for the same. Abhimanyu, just we find and mute the person who is unmute. Just a second. Okay. Amit bhai, just unmute yourself. Yeah, perfect. Okay. Okay, and now the second question is, what should be an exit strategy for a stock when it has moved more than 50%? What should be a person's exit strategy? Sir, nothing. Sir, I don't look at stocks which have moved up 50% and I need to exit. मतलब मैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता जो 50% के लिए मेरा टारगेट हो. I invest in stock in which I am finding a good opportunity. मतलब वो 5x, 10x हो 10, 12 years में. Then only I go for investing. Otherwise, I don't go for 50% and exit. So that is not a cup of that is not my cup of coffee. So मतलब मैं नहीं इन्वेस्ट करता. I don't do that. Okay. The third question is, if the price of a stock is going down daily without any fundamental change,
I think you've already spoken on this on the presentation, पर मैं फिर भी ये question पूछ रहा हूँ. If the price of the stock is going down daily without any fundamental change, should we hold, sell, or increase the allocation? Can you give an example of something which has happened to you? Like if the price is going down daily, fundamental में नहीं आ रहा है और आपने सेल किया है, होल्ड किया है या उसमें इंक्रीज किया है अपना एलोकेशन? अगर आपका 100% एलोकेशन उसमें नहीं हुआ है, डिजायर्ड एलोकेशन, देन यू कैन एवरेज डाउन. इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट, बट यू शुड नो कि वो प्राइस डाउन क्यों जा रहा है. वो फंड सेलिंग से जा रहा है, वो किस रीजन, वो फंडामेंटल्स खराब होने की वजह से जा रहा है. फंडामेंटल खराब नहीं है लेकिन फंड सेलिंग हो रहा है. सो यू शुड नो कि बिहाइंड द बार्स क्या चल रहा है. लर्न टू रीड बिटवीन द लाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको लग रहा है कि फंडामेंटल सेम है लेकिन कोई फंड सेलिंग है और सामने बाइंग नहीं आ रही है, उसकी वजह से नीचे जा रहा है, देन यू शुड नो कि वो गेम कैसा प्ले हो रहा है. सो एवरेजिंग डाउन इज नॉट अ बैड स्ट्रेटेजी इफ यू नो हाउ टू प्ले इट. Okay, now the next question is, how many companies do you hold in your personal portfolio, and what is the allocation size? It is the same for all कि have you selected कि ये 3 companies में ज्यादा करेंगे, ये 3 sectors में ज्यादा करेंगे? Like what is your strategy? Ayush bhai, see, I share a glimpse of my journey. Previously, I used to hold 60-70 stocks in my portfolio. Okay, I was also a bit lazy and bit scared के क्या हो जाएगा हम concentrate करेंगे तो. But currently, I manage 2 kind of portfolios. In first portfolio, I mostly own blue chips company और उसमें I don't have more than 12 names, and I am right now concentrating on squeezing the name to 9. So it gives me a good amount of allocation and it gives me good amount of time कि मैं 9 business पे concentrate कर सकूं. And rest satellite portfolio, you all know that I don't hold more than around 10-12 names because I keep feeding my core portfolio with my satellite portfolio. So overall not more than 18-20 names. Overall not more than 80-20 names. Okay, and now the next question is, what should be the ideal allocation between large, small, mid cap, micro cap, penny stocks? आप ऐसा कुछ देखते हो कि you are just looking at this fundamental technical, what is your checklist? You go on your checklist कि you go on the market capitalization of a particular company, कि आपका large cap में इतना रहना चाहिए, mid cap में इतना रहना चाहिए, small cap में इतना रहना चाहिए, like you go on that or you just go purely on your checklist? No, I just go purely on my check. It doesn't matter that if I hold a blue chip means blue chip. वो 2000 करोड़ की कंपनी भी blue chip हो सकती है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकती है. It doesn't mean उसको market cap से कुछ लेना देना नहीं है. In my terms, if the fundamentals are good, even a 100 crore company deserves it deserves to be in my portfolio. If the fundamentals are good, so I go by my checklist. I am not that market agnostic person कि ऐसा ही होना चाहिए. No, not like that. Okay, now we go to the last question of the emails. How can one know the management is speaking the truth in con calls and AGRs which have looking forward statements? Like the growth estimates, like can they be off targets, or the targets what they are putting, are they prudent targets, are they very high growth estimates? How do you make this judgment? आप अगर जा रहे हैं तो आप कैसे उस judgment को करते हैं? आप calls attend करते हैं या meetings में जाते हैं? How do you make such judgment कि it is prudent or it is very high growth rate they are giving in the estimates they are giving in the looking forward statements? ओके, चेक मैनेजमेंट हिस्ट्री. अब हिस्ट्री चेक करो कि उन्होंने पहले जो कहा है वो किया है या नहीं किया है. अगर किया है तो आगे वो कर सकते हैं, तो कैसे नहीं कर सकते तो कैसे. इफ द मैनेजमेंट इज फॉरवर्ड लुकिंग तो आप चेक करो कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. इफ द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज गोइंग बाय 5-6% और मैनेजमेंट बोल रहे हैं हम 15% ग्रो करेंगे, तो कैसे करेंगे. यू शुड नो कि ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है, हो भी सकता है. फ्यू ऑफ द कंपनीज आर हैव दैट काइंड ऑफ एबिलिटी कि सेक्टर 5% ग्रो कर रहा है लेकिन कंपनी 10% से ग्रो कर रही है. लेकिन यू शुड नो कि कौन सी कंपनी ये कर सकती है, कौन सा मैनेजमेंट ये कर सकता है. सो ओनली फ्रॉम हिस्ट्री यू वुड बी एबल टू नो कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है और क्या बोला है और उन्होंने क्या किया है. एंड यू शुड नो मैक्रो एज वेल कि मैक्रो में क्या हो रहा है, मैक्रो में क्या नहीं हो रहा है.
तो देन ओनली यू विल बी एबल टू कनेक्ट कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है वो होगा या नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है मैनेजमेंट आपको बोल देगा कि हाँ ये हो सकता है, वो आजकल आयुष भाई सबको पता है, सब मैनेजमेंट को पता है, आप मैनेजमेंट से मिलते भी हो ना तो सबको पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें थाली कैसे परोस के देनी है ना, वो सब मैनेजमेंट को पता है। सब मैनेजमेंट अच्छा ही बोलेंगे, फॉरवर्ड लुकिंग बोलेंगे। 20% कहेगा तो मतलब आप ऐसे अचीव कर लोगे मैनेजमेंट के मुंह से, लेकिन वो वर्क में कितना आ रहा है, इफ दैट इज, अगर वो आपको डेटा में दिख रहा है, आपको डेवलपमेंट वो दिख रहा है तो सही है। अगर आपकी हिस्ट्री वो बोल रही है कि आपने हिस्ट्री में 15% बोला और आपने 12 से 15% निकाल के दिया है, अगर आपको लग रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमिक्स उसको फेवर करेगा देन इट इज गुड। अगर आपको लग रहा है वो नहीं करेगा तो फिर भाई कुछ गड़बड़ है, आप चेक करो, अब डेटा चेक करो, आपको तुरंत नहीं पता चलेगा। ठीक है मैनेजमेंट ने बोला एक एक क्वार्टर के बाद चेक करो, 2 क्वार्टर के बाद चेक करो, अगर वो चीज हो रही है, वो चीज दिख रही है देन इट इज गुड, और अगर नहीं दिख रही है तो कुछ गड़बड़ है, फिर देखो उसमें आप। उम्मीद Okay, भाई, so these ये are the questions. Okay. देर आर सम 11 पीपल। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, तब ये 11 कुछ तो इन्होंने आपके जो ट्विटर आपने एएमए डाला था तो हमने वहां से ये क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए हैं। सो दीज पीपल हैड पुट इन सम क्वेश्चंस ऑन ट्विटर। तो अगर आप चाहो तो आई कैन आस्क यू दीज क्वेश्चंस वन बाय वन, और इफ यू वांट you can randomly select the questions and you can answer those questions whatever is comfortable to you. But these were the questions, these were the मतलब limit of all the questions which came on your Twitter AMA। जब आपने बोला था कि वो मीटिंग में हम एड्रेस करेंगे तो इतने क्वेश्चन, फिर उसके बाद व्हाट वी कैन डू, अभी जो मीटिंग में पीपल आर आस्किंग आई थिंक सम क्वेश्चंस ऑन द चैट, उसके बाद वी कैन टेक द क्वेश्चंस ऑन द चैट। तो Okay. इसमें हाँ, आपको Okay. ये वाले पूरे क्वेश्चंस अगर देखने हैं या इसमें से कुछ उठाने हैं, कुछ आपको लग रहा है हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, तो यू टेल मी, वी कैन गो लाइक दैट। ओके ओके, आई विल आंसर, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। ओके चलो ठीक है। I put in the names of the people, the Twitter IDs of Okay, the so Arjun Patala has asked the question: how do you get information on companies that don't conduct con calls except using annual reports, presentations and forms? Sir, Shuttlebot, आप शटलबट करो। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट अंडररेटेड मेथड, आप शटलबट करो, आपको ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगी। आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से मिलो, आपको पता चल जाएगा कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है। और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर के नीचे चले गए और कोई डीलर है आपने उससे बात कर ली, आपको पूरी जियोग्राफी देखनी पड़ेगी कि साउथ में उसका सेल्स है तो वेस्ट में है, वेस्ट में नहीं है तो नॉर्थ में है, तो कैसे है, आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। अगर आप पूरा चेक कर पाए तो दैट इज गुड, आपको पता चल जाएगा कि आपको फिर एनुअल रिपोर्ट से सिर्फ डेटा ही मैच करना है। तो दिस इज हाउ यू गेट इन्फॉर्मेशन। अगर आप आपकी बैंडविड्थ नहीं है कि आप उधर जा नहीं सकते, आप अपना ग्रुप बनाओ, कनेक्ट करो, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से कैसे भी कनेक्ट करो, फ्रेंड्स बनाओ। कोई साउथ में है, 2-3 फ्रेंड्स साउथ में है, 2-3 फ्रेंड्स वेस्ट में है, कोई मुंबई में है, कोई बैंगलोर में है, उसको बोलो भाई तू वहां पे जा, चेक कर क्या हो रहा है। आप गुजरात में चेक करो, कोई बंदा पंजाब में चेक करेगा। फ्रेंड्स बनाओ, ग्रुप बनाओ, एसोसिएशन करो, उससे आपको पता चल जाएगा, आपको इजीली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर कनेक्ट करो सब जगह से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, वो डेटा क्या दिखा रहा है, आपको पता चल जाएगा। दैट इज नथिंग रॉकेट साइंस इन इट। बस थोड़ा एक्स्ट्रा माइल ट्रैवल करो, थोड़ा एफर्ट्स डालो, एंड आई एम लकी टू हैव फ्यू गुड पर्संस विथ मी, कि उनकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। माई फर्स्ट ट्विटर फ्रेंड मिस्टर आदित्य कोंडावर, आई थिंक आप जानते होंगे उनको। सो ही हैज हेल्प्ड मी, माई ब्रदर हु इज द बैकबोन ऑफ माई इन्वेस्टिंग जर्नी। उनके अगर वो नहीं होता, आई एम जस्ट 1% एंड माई ब्रदर इज 100%, बस। बट आई एम द फेस ऑफ माई पोर्टफोलियो, यू कैन से दैट। And the main guy who has helped me a lot, his name is Gurjeev Singh Anand. He's like my big brother. उनसे एसोसिएशन हुआ, I have learned a lot from it. So association matters. आप एसोसिएशन करो अच्छे लोगों से, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सब लोग ऐसे नहीं होते कि उनको आपसे कुछ मतलब है, कोई अच्छे लोग आपको मिलेंगे। आप 100 में से 5-7 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको रियल में, जो उनका नेचर होगा रियल में आपको हेल्प करेगा। तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कॉन कॉल्स एंड अपार्ट फ्रॉम बुकिश नॉलेज, आपको ये सब एक्सपीरियंस और ये सब एसोसिएशन बहुत काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइकून माइंडसेट। हाउ डू यू मैनेज रिस्क while investing, whether to take help of technicals or any other method while exiting stocks? How do you, okay. So how I manage it, it totally depends on my checklist. If it falls in my checklist, then only I invest. मतलब I don't see, एक example देता हूँ, I have not invested
मच पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो इन फार्मा स्टॉक इन द रिसेंट रैली। ठीक है, वो जिनको समझ में आया उनको समझ में आया, उन्होंने उसमें पैसा कमाया। आई डोंट अंडरस्टैंड फार्मा, इतना इजी नहीं है मेरे लिए समझना। सो मैंने फार्मा में पैसा नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एक दो स्टॉक्स मतलब थोड़ा बहुत जिसमें मुझे नॉलेज था उसमें इन्वेस्ट किया था, लेकिन नॉट मोर देन 2, 3 और 5%, उससे ज्यादा नहीं किया। लेकिन इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी फोमो, उसको मतलब कुछ है नहीं, और नो पोमो, नो पेन ऑफ मिसिंग आउट, कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया, मैंने नहीं किया। सो हाउ आई मैनेज रिस्क, ओके, जो मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में है, आई इन्वेस्ट ओनली इन दैट स्टॉक्स। यस, आई यूज टेक्निकल्स, मतलब टेक्निकल्स, प्योर टेक्निकल्स नहीं, आई चूज टू थिंग्स इन टेक्निकल्स के प्राइस में वॉल्यूम कितना है, और उसमें प्रोफेशनल बाइंग क्या है और रिटेल बाइंग क्या है, आई चेक दैट। सो उससे हमें पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली कोई भी कंपनी को आपको देखना है कि वो कंपनी कैसा है, उसका बिजनेस कैसा है। कुछ नहीं करो, लास्ट 20 ईयर्स का चार्ट उठाओ, सिर्फ टेक्निकल चार्ट उठाओ लास्ट 20 ईयर्स का। अगर वो चार्ट ऐसा ऐसा है ना, आपको समझ में आ जाएगा बिजनेस कैसा है। इट इज वेरी सिंपल सर, अगर उसका चार्ट ऐसा है ना, आपको समझ में आ जाएगा बिजनेस कैसा है। कुछ नहीं करना है, 10-10 सेकंड में आप पता चल जाएगा आपको बिजनेस क्या कर रहा है, सिर्फ 10 सेकंड्स में। लास्ट 20 ईयर्स का चार्ट खोलो, चार्ट क्या बोल रहा है आपको तुरंत पता चल जाएगा कि बिजनेस के फंडामेंटल्स कैसे होंगे। अगर चार्ट ऊपर नीचे होगा 100% सिग्निकल होगा, अगर चार्ट ऊपर गया है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेंड, वैल्यू माइग्रेशन, कुछ ना कुछ उसमें होगा। ऊपर से नीचे आया है तो उसमें कुछ ना कुछ कंपिटेटिव एडवांटेज होगा जो खत्म हो रहा है, वो इंडस्ट्री सनसेट इंडस्ट्री होगी। आपको चार्ट से इजीली पता चल जाएगा। या तो आई यूज टेक्निकल्स बट नॉट 90% इज फंडामेंटल्स, 10% इज टेक्निकल, बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम गुरजीव सिंह आनंद। वो मेरा कंसेप्ट नहीं था, मैं उसमें जीरो था, बट सिंस पास्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स से उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ये गाइड किया है, सिखाया है। सो नाउ मतलब थोड़ा मैंने अपना प्रोसेस भी शार्पन किया है इससे। So how do you decide to exit the stock? Which okay, that's answer. Patel, invest in insurance company. Are this business worth investing is per? Yeah, I am highly bullish on insurance sector. See, insurance business is good. आप उसको स्टडी करो, यू विल गेट टू नो कि जनरल इंश्योरेंस ज्यादा अच्छा है, लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा अच्छा है, दोनों अच्छे है, ऐसा नहीं है, दोनों रिक्वायर्ड है। आप गाड़ी लोगे तो आपको जनरल इंश्योरेंस जाना पड़ेगा, आपको लाइफ इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है। सो इट इज नो कंपैरिजन के कौन सा अच्छा है, कोई डिबेट नहीं है। इट्स ओके, जिसको जो समझ में ज्यादा है वो इन्वेस्ट किया। आई हैव इन्वेस्टेड इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज आई लाइक दैट कंपनी मोर, आई लाइक दैट बिजनेस मोर। सो किसी में भी कर सकते हो आप। इट्स नॉट दैट कि ये अच्छा है, ये इट्स नॉट वर्सेस वर्सेस, ऐसा नहीं होता है। आपको जो समझ में आया आपने कर दिया, दैट्स इट। हाउ डू यू आइडेंटिफाई वैल्यू बाय वर्सेस वैल्यू ट्रैप? आई कैन डू दैट सर, ये बहुत टफ है सर। वैल्यू बाय वर्सेस वैल्यू ट्रैप आइडेंटिफाई करना वो आपको बाद में ही पता चलेगा। आपको लगेगा कि 10 रुपए का स्टॉक 6 रुपए में मिल रहा है, लेकिन उसके बिजनेस फंडामेंटल आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कभी कुछ क्या हो जाए वो नहीं सर, दैट इज वेरी टफ, दैट इज वेरी टफ। आई गिव यू वन एग्जांपल। आई हैव इन्वेस्टेड इन अ कंपनी, प्लेटफॉर्म कंपनी, ठीक है, बिजनेस फंडामेंटल्स अच्छे थे, प्रमोटर ठीक ठाक था, बिजनेस फंडामेंटल्स अच्छे थे, बट प्रमोटर इज डूइंग सम गुड जॉब, ठीक ठाक था लेकिन इंप्रूविंग इंप्रूविंग। बट एक मार्केट लीडर आ गया और उसने उसका बिजनेस पूरा चॉप कर दिया। 3 साल की मेहनत, वैल्यू बाइंग की 3 साल की मेहनत मार्केट लीडर में 1 ही साल में चॉप कर दी पूरी। सो आई एम नॉट गुड इन आइडेंटिफाइंग वैल्यू बाइज एंड वैल्यू ट्रैप्स, बट या आई लुक एट थिंग्स, उसमें अपडेट क्या हो रहा है। अगर अपडेट हो रहा है ना सर, सो आई कीप ऑन इंक्रीजिंग माई एलोकेशन, दैट इज वाई एवरेज अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई शेयर 10 रुपए का है, आपको लग रहा है 6 रुपए में मिल रहा है, तो आप 10-20% इन्वेस्ट करो ना, वो 7 रुपए का हो जाए, आपको डेटा अच्छा देगा तो फिर आप उसमें एलोकेशन बढ़ाओ। अगर आपको नहीं देगा तो आप स्टॉप हो जाओ, आपका पैसा बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, एवरेज अप करो, दैट इज ऑल्सो प्रोसेस। आपको मतलब एक साथ में आपका 100% एलोकेशन तो नहीं होगा, आप स्टक तो नहीं हो जाओगे सर। सो so I am not good in identifying value buy versus value trap, but yeah, I have my methods, I have a few of my laws and rules, so that is okay, which उससे पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। so that depends, that varies from person to person। so वो एक्सपीरियंस से ही आएगा सर। आपको, आप मार्केट में जितना रहोगे उतना आपको बिल्डअप होता रहेगा। What if one, Mr. Chetan has asked, what if one has invested in good companies, good PSU banks with superb dividend yield, but valuation of investment is decreasing day by day? तो सर वो superb कैसे हुआ? And one is holding it with lot of patience from so many years. Your suggestion? सर वो superb कैसे हुआ फिर सर? अगर वो उसका मतलब फंडामेंटल्स खराब हो रहा है और पीएसयू है, वो पीएसयू टैक्स ठीक है,
फंडामेंटल्स खराब हो रहा है सर, डिविडेंड यील्ड बढ़ रहा है, तो फिर तो व्हाट टू आंसर इन दिस सर? वो आपने खुद ने, आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है। तो फंडामेंटल खराब हो रहा है तो सर यू शुड एक्सिट, मतलब आपको सिर्फ डिविडेंड के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है दैट आप यू आर मोर कंजर्वेटिव, ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए कि आप डिविडेंड पे, चलो इतना तो फिक्स मिल रहा है ना, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। लेकिन अब देखो कि 100 का शेयर 50 हो गया, ठीक है, बिजनेस फंडामेंटल खराब होने की वजह से, वॉलेटिलिटी की वजह से नहीं, और आपको डिविडेंड yield 5 का 10% हो गया, पर क्या मतलब है सर? कोई मतलब नहीं है। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। आपको डिविडेंड वो नहीं दे, उससे कोई फर्क दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। डिविडेंड नहीं भी दे, यू कैन, मतलब कंपनी को मतलब आप बोलो कंपनी को कि डिविडेंड ना दे, दे कैन कीप द डिविडेंड अमाउंट विद देम, बट वो कंटिन्यूस ग्रो करे। अगर वो ग्रो करेगा ना सर, तो अच्छा खासा रिटर्न बनेगा। सो ऐसे सब कंपनीज में आई डोंट थिंक यू शुड फोकस मोर। देयर आर मेनी गुड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, आप वहां पे फोकस करो सर। लर्न न्यू थिंग्स मार्केट सर। Durgesh Bhai has asked your view on financial sector, as the sector is one of the most impacted sector of the corona pandemic. Financial sector मतलब banking। आयुष भाई स्क्रीनर है? आयुष भाई हाँ आप या स्क्रीनर ऑन, हाँ मैं खोल देता हूँ, मैं खोल देता हूँ उसको। हाँ, ऑन करो, जस्ट स्क्रीनर ऑन करो। ओके, क्वेरी में जाओ। हाँ एक सेकंड। ओह सॉरी। हम्म, डालो सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 years। ग्रोथ मीत भाई शायद 7 years है स्क्रीनर में, 10 year आई डोंट थिंक दे अपडेटेड। ओके ओके, ये वर्जन ओके, ठीक है। लिखो मोर देन 15%। ठीक है ओके, अब नीचे सेकंड क्वेरी डालो, डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है। लेस देन 1। रन करो क्वेरी। कितना नेम आया आयुष भाई? नॉट इवन, एंड नॉट 383। इवन 10%, नॉट इवन 10%। इसमें अभी तो मैंने प्रमोटर होल्डिंग्स नहीं डाला है सर। इसमें डेट टू इक्विटी 1 रखा है, डेट टू इक्विटी ऐसा भी नहीं, मैंने डेट फ्री रखा ही नहीं है, 0.5 से नीचे भी नहीं रखा है। 15% सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 7 years, 15%। नॉट इवन, डेट टू इक्विटी 1 है आयुष भाई, 1 है, एंड नॉट इवन 10%। नहीं तो आई वाज अ लिटिल सरप्राइज जब आपने 1 डाल दिया वहां पे, क्योंकि कम होना चाहिए था। और एनीवेज नहीं पर डालो ना, ठीक है, 1 है फिर भी 10% नहीं है, सो इट मीन्स वी ऑल से कि बैंकिंग ठीक है, इसमें सनसेट हो रहा है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है सर, थोड़े बहुत लूप होल्स और थोड़े बहुत बम्प्स आते रहते हैं, स्पीड ब्रेकर आते रहते हैं, वो ठीक है सर। लेकिन इफ यू आई एम बुलिश ऑन बैंकिंग सेक्टर, बट आई एम सुपर बुलिश ऑन फ्यू ऑफ द गुड कंपनीज इन बैंकिंग सेक्टर, नॉट ऑल, सब कंपनी ऐसे नहीं होती है सर, लेकिन 2-3 4 अच्छी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग में भी कंपाउंड करेगी सर। सर आप खुद देख लो, आपके पास डेटा है, यू डोंट नीड टू आस्क मी सर, आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ सर। आप खुद देख लो, थोड़ा मेहनत करो सर, आपको खुद पता चल जाएगा इंडिया में ऐसी कितनी कंपनीज है। अगर अगर आप सर 0.5 डालोगे ना, तो आई थिंक इससे भी आधी कंपनी हो जाएगी। तो मतलब आई एम सुपर बुलिश ऑन बैंकिंग, ऐसा नहीं है, एंड there is no point in being bearish on banking sector, yes, but select good companies only। बुलिश का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मतलब नो बैंक पकड़ लो, ऐसा नहीं है सर। बैंकिंग अच्छा सेक्टर है, लेकिन फाइंड गुड कंपनीज इन दैट, फ्यू कंपनीज आर डूइंग गुड इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन, आप उनके ऊपर फोकस करो, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू कंपाउंड योर मनी हेल्दीली एंड हैप्पीली इन लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। तो मीत भाई अभी
वेट जस्ट अ सेकेंड, वी हैड आंसर क्वेश्चन, आखिरी आपने किसका आंसर किया था? ये बैंकिंग। जस्ट सेकेंड मैं शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड सर। आखिरी आपने किनका आंसर किया था अमित भाई? आई थिंक दिनेश भाई का आंसर किया था आपने। हाँ हाँ। तो Okay, how do you identify in which stocks the accumulation is being done by institution? सर सॉफ्टवेयर है ना, ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर देखो, वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको पता चलेगा कि रिटेल बाइंग कितना हो रहा है और इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल बाइंग क्या हो रहा है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल बाइंग एकदम परफेक्टली जानना है तो सर वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, दैट वी वोंट बी एबल टू नो। हाँ, बट आपको थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर से मिल सकता है। ट्रेडिंग व्यू करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप देख सकते हो कि प्रोफेशनल बाइंग क्या है और रिटेल बाइंग क्या चल रहा है। How do you positional option buying for 9 to सर आई डोंट डू दैट। मैं एफएनओ करता ही नहीं हूँ, मैंने पूरी लाइफ में नहीं किया ऑप्शन और ये तो। आई एम नॉट दैट मतलब एक्सपर्ट पर्सन टू आंसर योर क्वेरी, आई एम सॉरी। बट या 9 to 5 ऑफिस गोइंग पीपल, आप एसआईपी कर सकते हो सर। आप एसआईपी करो सर एंड यू विल बी एबल टू कंपाउंड योर वेल्थ। आप एसआईपी करो, इंडेक्स स्टॉक्स में एसआईपी करो सर। व्हाट आर द सेक्टर्स which you are looking for long term, sir? I think we have discussed enough sectors. I think so. yeah, I think yeah, because there are 11 more questions of people, 11 to 12 or questions of people who have entered now in the chat. तो मैं यही सोच रहा था, अब ये questions मैं आपको ऑफलाइन भेज दूंगा या आप AMA ट्विटर पे डायरेक्टली आंसर कर देना। अब हम चैट के questions ले लेते हैं। एंड Okay. गाइस, बिफोर चैट के क्वेश्चन लेते हैं, आई नीडेड टू मेक अ क्विक अनाउंसमेंट। सो एज यू नो, हमारे जो नेक्स्ट दो इवेंट्स थे, पहला इवेंट था विद मिस्टर इशमोहित ऑफ द स्कूल ऑफ इंटेंसिव कंपाउंडिंग एंड दूसरा इवेंट था विद अभिजीत चौकसी ऑफ स्टॉकीफाई इन्वेस्ट। सो Abhijit bhai, he may not be available because of some personal reasons. He is going for a wedding. So I have a very big surprise for all of you. So if you go on PMSAIS World and if you search for the top 3 PMSs in India, you will get the name of Negen PMS. So Negen PMS is operated by fund manager Neil Sahal. The returns of financial year 2021 have been 109%. So he will be taking a session in December. He has just confirmed me. अभी जब मीटिंग चल रहा था तो I was side by side doing a talk with him. He's just confirmed me. So Neil bhai will be taking a presentation in December. So I will be putting on the formal announcement of the same. बट आप लोग वो वाला भी अटेंड कीजिएगा। नाउ मीत भाई, इफ यू वांट, हम जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम जो चैट के क्वेश्चंस हैं वो वाले ले लेते हैं पहले, अगर आप बोलो तो। बिकॉज वहां पे आई थिंक अराउंड 12-13 क्वेश्चन, अभी तो 20 क्वेश्चन हो गए हैं, तो अपन चैट के पहले ले लेते हैं क्वेश्चंस। मैं 1 मिनट आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस। No, I am able to see the questions. I am able to see the questions. Okay, but the first 11 questions I am WhatsApping you because the first 11 questions they came while we were presenting. So I was Abhimanyu was accumulating these questions and he has sent me a list. So I will WhatsApp you the questions. The first 11 questions I WhatsApp you. उसके बाद के जो questions हैं, questions are on the chat. So you can take your already, like we've taken I think 1.5 hours, ज़्यादा ले लिया, 2 घंटा होने वाला है। आपको जो भी इसमें से 5-7 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, आप आंसर कर दो। आपको व्हाट्सएप भी कर दिया मैंने और ये चैट में भी है। Okay, I am comfortable. So someone has asked that you said EQ should be greater than IQ, and now you said कि emotional connect with no emotional connect with any stock, तो सर नहीं होना चाहिए ना। That's what I have said कि इमोशनल क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इमोशनली अटैच होना है, उसका मतलब है आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है, आपको डेटा पे रिलाई करना है, आपको ग्राउंड रियलिटी पे रिलाई करना है, आपको इमोशनली उससे अटैच नहीं होना है सर, मैरी नहीं करना है सर आपको। सो दैट इज व्हाट आई हैव सेड कि आपको आपका बुद्धि कितना चल रहा है उससे ज्यादा है कि आपका बिहेवियर कैसा चल रहा है सर। तो नो इमोशनल कनेक्ट विथ योर स्टॉक, सो दैट इज व्हाई EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर IQ। इन दैट कंटेक्स्ट आई हैव सेड you look at consolidated or standalone results of the both consolidated. Clarification how to measure the management quality in India. Okay sir, I have repeated few of the answers many times. आप मैनेजमेंट का हिस्ट्री चेक करो सर,
मैनेजमेंट क्या कर रही है, मैनेजमेंट ने क्या बोला है, मैनेजमेंट ने जो बोला है वो उन्होंने किया है। इज द मैनेजमेंट इज प्रूडेंट, इज द मैनेजमेंट इज शेयर होल्डर फ्रेंडली, वो क्या कर रही है सर, वो आप उसके पास से ही पता चल सकता है सर। सो रीड 10-15 years एनुअल रिपोर्ट्स देयर, कॉन कॉल्स क्या कर रहे हैं, कॉन कॉल्स नहीं है तो एनुअल रिपोर्ट्स देखो, आप ग्राउंड रियलिटी पता करो, मैनेजमेंट डिस्कशन होता है रिपोर्ट में, तो आप वो पढ़ो तो यू वुड बी एबल टू नो कि मैनेजमेंट क्या क्या है, क्या कर रही है। वो 15% बोल रहा है तो 5% निकाल के दे रहा है या फिर 15% निकाल के दे रहा है, यू विल बी एबल टू नो। बट रीड अलॉट, रीड अलॉट, 10-15 years का एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, रीड अलॉट। When we say technical analysis is good for trading and not for long, sir, see, no analysis is good for anything, sir. ऐसा नहीं होता कि टेक्निकल एनालिसिस से आप ट्रेडिंग ही कर सकते हो। टेक्निकल, बहुत सारे फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं जो टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो फंडामेंटल्स भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई मतलब डोंकी स्टॉक ना आ जाए, कोई गधा स्टॉक ना आ जाए। तो दोनों इंपॉर्टेंट है सर, टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा बायसनेस नहीं है कि टेक्निकल नहीं करना चाहिए, करो, फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ उसके ऊपर फोकस करो जिसके ऊपर आप गुड हो। इफ यू आर अ गुड टेक्निकल एनालिस्ट आप उसके ऊपर फोकस करो, इफ यू आर अ गुड फंडामेंटल एनालिस्ट आप उसके ऊपर फोकस करो। सो फाइंड योर नीश, आप फाइंड आपको क्या सूट हो रहा है। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर फंडामेंटल एज वेल एज ट्रेडिंग। As I am from non-financial background, suggest book for understanding. Sir, I have already mentioned few of the books and आप उनको go through कर सकते हो। Read Financial Shenanigans by Howard Schillit। उससे आपको बहुत सारा पता चलेगा कि अकाउंटिंग गिमिक्स क्या होता है। सो आपको रीड करना चाहिए सर। What do you say? Sugar industry is cyclical as it is into ethanol, which contributes to the bottom line. It is required for full. Sir, देखो, कोई चीज हमेशा यूज होती है वो ठीक है, लेकिन उसके प्राइसेस क्या बिहेव करता है, क्या यूजेज होता है, परसेंटेज कितना होता है, सर उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सिक्लिकल है या सिक्लिकल नहीं है। सिक्लिकल ऑलमोस्ट 80% सब सिक्लिकल ही होता है क्योंकि सब कमोडिटी से रिलेटेड है। लेकिन वो कमोडिटी की प्राइस स्टेबिलिटी क्या है सर, आप वो चेक करो, थोड़ा लेंस को जूम करो सर। कमोडिटी की प्राइस स्टेबिलिटी क्या है उससे आपको पता चलेगा, ट्रेंड स्टेबिलिटी क्या है, वो यूजेज स्टेबिलिटी क्या है, ग्रोथ स्टेबिलिटी क्या है, उससे आपको पता चलेगा कि ये सेक्टर सिक्लिकल है या नहीं है। अगर है तो किस हिसाब से, और अगर नहीं है तो भी किस हिसाब से है। तो थोड़ा डीप जाओ। ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ शुगर बोल दिया तो शुगर में एक कंपोनेंट ऑल टाइम यूज होता है तो वो नहीं होता है सिक्लिकल, या वो हो जाता है सिक्लिकल, ऐसा नहीं होता है। 80% ऑफ द थिंग कमोडिटीज होती है। और रॉ मटेरियल क्या होता है सर, पर उसमें देखो कि कौन कितना प्राइस स्टेबिलिटी रख सकता है। दैट इज द मेन थिंग, प्राइस स्टेबिलिटी देखो उसका, रॉ मटेरियल की प्राइस स्टेबिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम, मेन थिंग। व्हाट अबाउट डिफेंस सेक्टर? What about yeah, defense sector is doing good, government is taking good initiatives, so you can if you have identified good companies, then just check the data, or if the data is showing you good things, then you can invest in defense stock. I am not recommending you, but yeah, defense sectors I think it will do well because government बहुत अच्छा काम कर रही है, तो I think it should do well. How to calculate entry in a stock which is all-time high, example LTI, PI Industry, Colbert. See, I am not invested in any of the three names, so I won't be able to guide you properly. But all-time high doesn't mean that the stock has reached a limit. ऐसा नहीं है सर, आपको पता होना चाहिए कि उससे आगे क्या क्या फ्यूचर है। अगर इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली यू टेक द कॉल। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड रिस्की कॉल्स। बट आप देखो कि आप जो जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो 52 वीक हाई है, तो वो क्यों है सर? अगर आपको उसमें लॉजिक दिख रहा है तो दैट इज नथिंग रॉन्ग इन इन्वेस्टिंग इन 52 वीक हाई स्टॉक। बट अगर आपको उसमें लॉजिक नहीं दिख रहा है, आपको कुछ दूसरा गेम दिख रहा है, तो सर उससे थोड़ा दूर रहिए। बट सर वो आपको एक्सपीरियंस आएगा, मैं एक बार बोल दूंगा उससे आपको नहीं आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। पहले देखो मार्केट को परखो सर। अगर आपको अगर आपको उसमें पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, देन ओनली टेक योर कॉल, अदरवाइज दीज आर वेरी रिस्की थिंग्स। दो अदर कंपनीज फंडामेंटली फाइन, though I repeat, though the company is fundamentally fine, it doesn't mean कि 52 वीक हाई रिस्की है सर। वो नहीं भी होगा सर, बहुत बार आपको आप बाई भी कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाई करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द नेम ऑफ द गेम, उसमें क्या हो रहा है। सो देन ओनली, सो गो डीप। फिर 52 वीक हाई 52 वीक लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, दैट इज द प्राइस। हाँ, कंपनी का फंडामेंटल 52 वीक हाई है, कंपनी का फंडामेंटल 52 वीक लो है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड 52 वीक हाई है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड 52 वीक लो है, सस्टेनेबिलिटी दिख रही है ग्रोथ में, मैनेजमेंट की सस्टेनेबिलिटी दिख रही है, वो 52 वीक हाई होना चाहिए ऑल टाइम, तो इन्वेस्ट करो। अगर वो नहीं है तो सर फिर देखो क्या हो रहा है।
how do you value businesses which will work if we compare with previous P? What is the better dividend yield in high P business, sir? Sir, if you are looking, if you are targeting growth, then why are you looking at dividend yield ratio? सर आपको कंपनी ऐसे ही कमा के दे रहा है तो आपको डिविडेंड यील्ड पे क्यों फोकस कर रहे हो सर? इफ यू आर फोकसिंग ऑन डिविडेंड यील्ड तो आपको वो पी वाला स्टॉक नहीं मिलेगा जिसमें आपका क्वेश्चन है. तो दिस आर टू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट. इफ द कंपनी इज गिविंग यू डिविडेंड 1-2% हाई डिविडेंड हाई पी स्टॉक, इट इज गुड. बट आप देख लो कोई भी हाई पी स्टॉक होगा उसका ज्यादा डिविडेंड नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. क्यों? उसका रीजन है अपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है. सो ये योर क्वेश्चन इज लाइक अगर आपको पी हाई है ग्रोथ स्टॉक है तो आपको डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है ना सर. आपका तो ऐसे ही बिजनेस कंपाउंड कर रहा है, क्यों देखते हो उसमें? व्हाट्स योर एडवाइस फॉर फ्रेश इन्वेस्टर, हाउ टू स्टार्ट? सर रीड बुक्स, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, नो योरसेल्फ. द फर्स्ट रूल इज टू नो योरसेल्फ. आपको क्या अच्छा लगता है, आप किसमें एक्सपर्ट हो, आपकी क्या नीश है, आप जिसमें अच्छे हो, नो योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, देन ओनली इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. सर आपको एक बीकॉम की डिग्री लेनी हो ना सर तो 15-18 साल लग जाता है सर, और सबको स्टॉक मार्केट में पहले ही दिन आके कमाई करनी है सर. ऐसा नहीं होता है सर. आपको डॉक्टर की डिग्री भी चाहिए तो एमबीबीएस के भी 4-5 साल लगते हैं सर, फिर जाके आपको एक डिग्री मिलती है. बट स्टॉक मार्केट सबको आके पहले ही मिनट पे कमाई करती है, पहले ट्रेड पे उनको प्रॉफिट चाहिए सर. ऐसा नहीं होता है सर. यू शुड नो कि आप क्या कर रहे हो. आप ठीक है 1-2 बार पैसा बना भी लोगे, लेकिन आपके उससे क्या घर बना पाओगे आप? सी दैट क्या आपका घर टिकेगा, घर चलेगा उससे? फिर नहीं चलेगा सर. वो ठीक है, वो 10,000 लोगों में से 5 लोगों ने बना लिया, वो ठीक है सर, वो स्टोरीज आती है, लेकिन उसके साथ देखो कि 10,000 में से बाकी के लोग ने कितना अपना घर बर्बाद कर दिया. तो सबसे पहले सर जानो अपने आप को, उसके बाद जानो स्टॉक मार्केट को. तो फ्रेशर्स को एक ही एडवाइस है सर, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, नो योरसेल्फ बिफोर यू नो स्टॉक मार्केट. इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, नो योरसेल्फ बिफोर यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. Do you recommend to have core portfolio and satellite portfolio? Yes. What? See, this is not recommendation. See, I am comfortable having 2 portfolios. ठीक है, this is my style. मुझे कोर पोर्टफोलियो अच्छा लगता है, सैटेलाइट पोर्टफोलियो अच्छा लगता है. कोर पोर्टफोलियो में आई एंजॉय कंपाउंडिंग, सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आई एम बिट एग्रेसिव, आई इन्वेस्ट इन बिट एग्रेसिव कंपनीज. ठीक है, सो इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट ठीक है, दिस हैज वर्क फॉर मी ओवर टाइम एंड आई हैव लर्नड अ गुड थिंग फ्रॉम दिस. और ये मेरे लिए काम किया है, तो मतलब मैं ये करता हूँ. एंड माई एलोकेशन इज 60-70% इन माई कोर पोर्टफोलियो where I am more focused, and 25-30% in satellite portfolio. And I keep feeding my core portfolio with the profits I earn from my satellite portfolio. So what works for you, आपको वो देखना चाहिए और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए. Ayush bhai, I guess I have answered all the 11 questions which you have WhatsApp me. So I think Umid if bhai, you guys there have are any some questions, then I'm all yours. Yeah, there are some questions in the chat box. Just give me 1 second. Now, I'll be quickly reading these questions because we've already taken a lot of your time. Just tell me if you want to avoid these questions or answer these questions. So, we'll be going very straight. So, this is from Abhijit. How to measure the management quality? I think we can avoid it because you've already spoken on this. Then, can we say technical analysis is good for trading and not for long-term investment? If you want, we can take this. This is from Deepak. If you want, we can take this or avoid it because I we have already answered this. I have already answered this question. This is already in your WhatsApp. Yeah. Okay. Just a second. So, okay, these people are asking again. Sorry. So, as I am from non-professional, okay, this also Already answered. Yeah, they are answering it again. Okay, why do you say sugar industry is cyclical as it is into ethanol, which contributes to the bottom line and is required? Already answered, Ayush bhai. I know. I'm just reading. Actually these people are. Wait. Let me check. Let me check the questions. I will answer. Let me check. Yeah. Okay. What's your view on IT and chemical sector? Is the rally over in this sector? Sir, see, I am no expert to say that rally is over or it just started or it was in the end of the first leg or nothing. But I am super bullish on few companies in IT as well as chemicals. I know what the promoter is doing, what the products are. So I am super bullish on them.
I don't know whether the sector will do good or sector will do bad. I don't know. But yes, I am super bullish on few of the chemical stocks and few of the IT stocks. That's all I can say you. And I'm no expert to predict is the rally is over or not. So, sir, I'm very sorry, but I can't answer that. What's your view on textile sector? I'm holding Indo account. Sir, sorry, I don't answer stock specific query, sir. I told you I am. There are many stocks which I am not aware about. I am aware about Indo account and Mayur Uniquarter, but I prefer not to answer any stock specific query. Your views on dairy sector? Yeah, few companies in dairy sectors are good. Yeah, dairy sector is overall. I'm bullish on dairy sector, but find some good companies. Don't invest in some milk food or that kind of companies. Your views on jewelry retail segment organized. I'm bullish. I'm bullish. I want to learn from you. How to know valuations of share is high? Can I say Asian Paint, HUL, RIL is having high? Sir, see, if the growth is intact, sir, valuation high है, ठीक है, तो उसके पैरामीटर्स चेक करो. सर, आई एम नॉट सेइंग कि कोई स्टॉक 80p पे है वो चीप है या एक्सपेंसिव है. सर, आप चेक करो कि पास्ट में उसका क्या ट्रेंड था, उसकी अर्निंग्स का क्या ट्रेंड था, उसके ग्रोथ का क्या ट्रेंड था, और वो अगर गिर सकता है तो कैसे गिर सकता है. सबसे पहले वो चेक करो. 70-75% प्रमोटर के पास है. अगर प्रमोटर बेचेगा नहीं तो 75% लॉक हो गया. 10-15% FII इंस्टीट्यूशन HNIs के पास होता है. अगर वो नहीं बेचेंगे वो लॉक हो गया. 10% सिर्फ पब्लिक के पास होता है. सर, तो सर कितना गिर सकता है वो स्टॉक, आप देखो. अगर आपको गेम समझ में आ रही है तो आपको पता चलेगा कि वो सस्ता है या महंगा है. अगर 10% पे वो लोग कितना खेल सकते हैं, इफ यू वुड एबल टू नो कि वो कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो 70p 80p पर है, ठीक है, वैल्यूएशन स्ट्रेच है, लेकिन वो कितना गिर सकता है और कितने टाइम तक नीचे रह सकता है. बिजनेस फंडामेंटल्स कितने टाइम तक नीचे रह सकते हैं वो आप चेक करो सर. तो आपको पता चल जाएगा कि 80p 90p 100p पे स्टॉक क्या कर रहा है. अगर वो डिजर्व करता है वो वैल्यूएशन तो क्यों करता है, गिर सकता है तो भी क्यों गिर सकता है, और नहीं गिर सकता तो भी क्यों नहीं गिर सकता. सो पूरी थाली देखो सर. आप थाली में ऐसा देख लिया कि नमक आ रहा है, नमक मत देखो सर. थाली में देखो कि नमक है, फिर गुड़ है, फिर शक्कर है, सब कुछ देखो, तो आपको पता चलेगा कि वैल्यूएशन को आपको कौन से कंटेक्स्ट में कैसे लेना है. सब स्टॉक में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जो स्टॉक में आप ट्रैक कर रहे हो उसमें उसको कैसे लेना है. अदरवाइज आपको सब हाई पी स्टॉक एक्सपेंसिव लगेंगे और सब लो पी स्टॉक आपको चीप लगेंगे. तो उसका भी एक रीजन होता है सर. तो आप पूरा पैकेज देखो तो आपको पता चल जाएगा. बेस्ट salary related party transacting. Okay. Vivek Mashrani is prime. Ayush, I think I have already I'm also finished. I think most of the questions are finished. So, guys, I'll just go over Finvent's, company once again, and then we'll be ending the presentation. Meet Bhai can give the ending note. So, just bear with me for another 5 minutes, like you bared with us for 2 hours. So today's presentation was by Meet Bhai, and Abhimanyu and I were the moderators. So Finvents, we basically have around more than 2,000 people member base right now. We've done more than 10 events till now. We had an early access offer which was going on, and we have proud that we are proud to associate with 20 speakers 2021. And some of the events would be free by some of the speakers, some events would be paid by some speakers, but that would be announced from January onwards only. That would not be announced right now. Then we've launched our website. Our website is finvents.in. You can go and visit our website. Then starting tomorrow, the early access offer that we were offering will be, gone. We have 2 more events planned for this calendar year. One is with Ishmohit from School of Intrinsic Compounding, and one is with Neil Behl. Neil is operating, if I am not wrong, the best PMS in India right now. Negen PMS is having the highest figure in India right now. So you can check on it on PMS IS World. So we'll be having one event with him.
Then for 2020-21, we have a scheduled session with 36 paid sessions and 12 free sessions. For free sessions, you don't have to pay anything. The speakers of those free sessions, like you'll get to know January onwards whose sessions would be free, whose sessions would be on the paid plan. We'll be announcing in January. Then we'll be also releasing a screener.in template soon, so you can use that on Screener. And then we Finvents, basically we plan to turn Finvents into a full-fledged social media network. This is the basic look at our speakers. So we have 20 speakers. I think most of them attend today's meeting. I'm very thankful for that. So these are our 20 speakers. Now, most of them will conduct free sessions. Most of them will conduct paid sessions, but I will not be disclosing it right now. I can disclose one name, like Avik sir, all his sessions would be free. So like his sessions, for his sessions, you would not have to pay anything. Same is with some other speakers, but all that we would be disclosing in January. So you would have to wait till January. And this is about our early access. Our early access was actually what is priced at 4,500. We are charging 2,500, and so in effect we are charging, we're giving you 500 benefit. What we feel, because we also do intrinsic valuation of our early access. So we are giving you an access of our social media platform. We are giving you access of a dedicated WhatsApp group where we don't give buy sell calls, by the way. Where what we do is give you some pro bono financial early information about events and early access to the presentation and the recordings. And then I do an exclusive session with you guys. Then you get access to my book. These are all the features of the annual membership that you get with the early access for free. And I think that is about it. So if you want the early access, the link is already in the chat. And second, we have announced two winners today. One is Mr. Sanjay Kumar. The other winner, I think Abhimanyu is having the name of that winner. So we'll be contacting both of you guys today only to give you the giveaway, because we had a giveaway. So we'll be giving you our free membership, our annual membership. We'll be giving you for free. So Meetbhai, if you want to give any ending note, we can, give, and then we'll be definitely ending the meeting. First of all, thanks Abhimanyu and Ayush Bhai for having me on the webinar and on your show. I am very thankful to each and every participant. Thank you for bearing with me. And I would like to thank a few of the people who have helped me very much throughout my investment journey. First of all, I've already mentioned my brother is the backbone of my investing journey. Mr. Aditya Kondavar, who is my first friend in investing journey. Later on, Ayush Bhai as well. And the big name, Mr. Gurjeet Singh Anand. You can say I am 60-70% more smarter than what I was before I meet Gurjeet Singh Anand. But he has helped me a lot. So much of my success belongs to my brother and these good, kind-hearted people. So I thank them with my both hands folded, and I thank everyone, every participant. आपने मेरे साथ bear किया. Thank you. Looking forward for more sessions with you, and have a good night. Happy journey. Okay, guys, thank you. So now you can leave the presentation if you want. Stopping the recording.